Hi, good evening all. Good evening, Subodhya. Hello, good evening. Finally, नया account. अरे नहीं लास्ट अकाउंट में इशू हो गया था तो हाँ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट before even starting alpha defense I was using that account, so there were a lot of personal information that was available on that account, and these guys started using that to track my personal location and then start targeting me because I was questioning their ability to be neutral. Okay, sure thing. or Okay, whatever will it be. is. I mean, I have just one regret that account was followed by Nirmala Sitharamanji, but whatever. Oh my God. Really? Yeah, yeah, yeah. So she started following me even before Alpha Defense, and at that point of time, she was defense minister. She somehow liked Great. one of my tweet, and then she started following. So, yeah, we'll start up the Q&A session. If you have any Okay, questions, do come up as okay. speaker. अगर कोई और होता ना, I would have given him the co-host rights. दे दूं क्या आपको भी? You can give it to Ghatak. Ghatak is also there. हाँ, घातक है ना. घातक co-host बन जा बस. मतलब तू तुझे बोलना है तो बोल, लेकिन co-host बन जाए. मुझे स्पीकर को accommodate नहीं कर पाता हूँ फिर. He's not in Okay, we Discord. have some questions now. महेश शिंदे. ये तो impromptu space है बस बोला. The Astra as well. Okay, fine. हाँ, घातक को होस्ट है आ गया. महेश भाई, go ahead. Ask any question you want. Hello, Mahesh. Mahesh, you are on mute if you are talking. Mahesh भाई, you're on mute. I think Fine. we can take next Ast question when he's available. Maybe uh, he'll respond. the Astra. Go ahead, भाई. I like I like your logo. It is sweet. The Astra, go ahead. Ask Yes, any sir. question you have. I want update on Tapas program. Like in the recent updates, we have seen our IF force is looking for the imported weapons and benchmarking those drones and found it less capable than Tapas. So what's your opinion on this? See, it's really interesting at this moment. Okay, so I'll I'll give you more details about it. Okay. Basically, there was an RTI that was filed to find out what exactly that one specific drone was all about. I'm not naming anything because that will create sort of controversy, but we all know that which system we are talking about at this moment. Okay, so we filed an RTI. We found out those systems were acquired for the benchmarking, and the benchmarks which Tri Services had, none of these systems, the like be it the indigenous system or the imported system, none of these systems could reach those benchmarks. So let's be clear about that. Now what is happening is they are recalibrating their benchmarks, and based on that they will induct the next systems. Now question could be that Tapas now maybe with the revised benchmarks uh, may meet all the requirement of Indian Armed Forces, but we must remember at this point of time Tapas is not certified because it was removed from the fast track process. Now it has to go through the ordinary process and get certified and all that. uh, for that, it will require a lot of time. Now, that creates a lot of loophole, and at this moment, we know those loopholes can be leveraged by all other available companies in India at this moment who are ready to peel stickers of foreign OEM system and call it as indigenous. So that's your Tapas. Looks like no more speakers are there. Maybe no one has any questions. I mean, what's the time in India at this moment? It's Don't reveal your around location, 11:30. okay? Okay. For me, it is evening. Okay. So I was okay. Uh, Wait a second. Don't reveal your location, okay?
Yeah. Any other You have questions? any further questions? So probably, Looks like no one have. okay. So let me ask some question. Do you find we have Pakistan just inducted the new drone like Shopper towards I don't know that name Correct. how it pronounced. So unlike beside having they have very small little budget, since they are developing, we can admit that they are progressing very fast. See, I don't know if you can say that they are progressing very fast, or they have achieved something which is really significant. This system which we are talking about, it can go up to 20,000, 21,000 feet, and with the payload, it remains somewhere in 16,000 feet altitude. Okay, and from there it can target. It can launch two anti-tank guided missile systems. Okay, now with that. Like the anti-tank guided missile system and the altitude, you can easily target Baloch rebels, which we should actually call them Baloch freedom fighters. You can easily target them. You can also target TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan, and you can also target uh, like anyone on Durand line. Okay, so and it's a single engine system, piston based system. If someone takes it out, it's fine, right? It's a cheaper system. So their approach is very clear. Whereas for India, the issue is when you like specifically for Indian Army, if you start operating in Himalayas, there are certain limitations, and this is why altitude is very important for Indian Army. Uh, and this is why the tri-services requirement was framed in such a way that it meets requirement of all three services. Tapas in current form meets the requirement of Indian Air Force as well as Indian Navy, but it does not meet the requirement of Indian Army because they want to operate that system in Ladakh kind of terrain, right? Uh, Good thing is the E4 engine that is used in Tapas, it has it's a big cylinder system, right? So the compression is large. Uh, that that engine can operate well in those mountainous terrain. It's just that it cannot go beyond certain height. So it remains in the reach of shoulder-fired, surface-to-air missile system, specifically those who are operating from high mountains, right? So it becomes easier, like it becomes an easy target. And probably that's why Indian Army is looking for a system that can go beyond that and remains like at least partially challenged, not completely unchallenged. So that's why Indian Army's requirement is different. Now, Pakistan, as I told you, that Pakistan's requirement is very clear cut. It's cut and dry, right? They want to target Baloch rebels, TTP. They want to keep a eye on Durand line. They want to target, uh, uh, you know, Afghans, and they want to help those small drone operators who are operating across the Punjab region, right? So those people they'll take a DJI Mavic and they will send it across the LOC, and then they will deliver their payload. Sometimes those crash, and sometimes those return back. So they're like they have limited roles. For us, as I told you, that roles are very specific, and this is why Indian Army is stuck into that situation. Probably after this recalibration, I don't know how if that recalibration was only for one specific service or if it was for all the three services. I see there will be more orders. Practically, at least from Navy, there will be more orders on Tapas. But let's see, because in our case, until unless something is signed and uh, it's contracted, till then we cannot even decide like if that will actually happen or not. And this is why a lot of time when we say certain things, we have to say that with a lot of caution, and that's why I'm like being little cautious. Yeah, you're correct. I can agree with that. India operates on very different kinds of geographical locations, so we need a better solution for all this. Exactly. But
one good thing about Pakistan is that whatever they have with their technological and economical issues, they they are very practical about their requirement. Whatever they can get their hands on, they'll acquire that and they will start using it. Uh, so probably I don't know how many of you have heard it that let best not be the enemy of good, right? Uh, that thing doesn't exist with Pakistan Army. They whatever system is available with their limitations, they'll induct it. Hello. Hi. Hi. This is the first time I'm joining into any this this First of kind all, of space. I like your profile picture. It's really nice. मैं तो आपका सब चैनल देखता हूँ, आपका अल्फा डिफेंस भी देखता हूँ, सारे देखता हूँ. आई एम आल्सो अ डिफेंस enthusiast. Awesome. So I just wanted to ask, ये जो अपना I can talk in Hindi, right? Yeah, it's fine. So आती है मेरे को हिंदी. कानपुर से जो हूँ यार मैं. अपना जो हम भी यूपी वाले हैं, हाँ. तो अपना जो जैगवार है, सो जैगवार अभी हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है, मतलब 125 से ज़्यादा जैगवार हैं. आप सब जगह ये सुनते हैं कि जैगवार के जो अपने एडोर इंजन है, ये इनकी पावर कम हो गई है, पुराने इंजन है. कोई बोलता है 20% कम हो गई है, 25% कम हो गई है. तो ऐसा कैसे होता है कि ये जो है कम हो गई? पहली चीज़. हम्म, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास सेम इंजन, आपका ये एडवांस जेट ट्रेनर जो अपना बीएई सिस्टम्स का है, उसमें भी रोल्स रॉयस एडोर इंजन लगे हुए हैं. इसका मतलब प्रोडक्शन में है. तो आप उनसे भी मतलब नए इंजन अवेलेबल है ना, इसका मतलब? तो आप उनको नहीं नए देखिए, इंजन क्यों नहीं दे देते हो? आप है ना उस चीज को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझे हैं. बेसिकली जैगवार को हम लोगों ने अपग्रेड किया है. सो जो जो जैगवार फाइटर बॉम्बर इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, ये हाईली अपग्रेडेड जैगवार है. और ये जो अपग्रेड किए गए हैं उसके चलते ओवरऑल एयरक्राफ्ट का वजन बढ़ा है. ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब आप ओवरऑल एयरक्राफ्ट का वजन बढ़ता है तो आपकी जो इंजन पावर होती है वो सफिशिएंट नहीं होती. एडिशनली बहुत सारे नए सिस्टम्स इनके ऊपर गए हैं, उसके ओके. चलते भी इनकी है ना मतलब पावर रिक्वायरमेंट बढ़ी है. दिस इज व्हाई यू वांटेड टू बाय दोस हनीवेल इंजन्स. हनीवेल से जो इंजन्स हम लोग अक्वायर करना चाह रहे थे, वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर देते हैं कि with all these new systems, Jaguar could have sustained their जो पावर रिक्वायरमेंट है वो हो जाता है. लेकिन रियलाइज किया गया कि जैगवार वैसे तो पुराने हो रहे हैं, साथ ही है ना हनीवेल के इंजन्स काफी कॉस्टली हो रहे थे. तो दे डिसाइडेड कि जो इंजन्स हैं उसी के साथ में हम लोग ऑपरेट करेंगे. व्हाट हैपेंस नाउ इज जैगवार जो पहले एक स्पेसिफिक छोटी रनवे से टेक ऑफ कर पाते थे, उस वो रनवे से आप अब ऑपरेट नहीं कर पाते हैं. आपको थोड़ा ज्यादा लंबी दूरी तक टैक्सी करनी पड़ती है और उसके बाद आप टेक ऑफ करते हैं. सो आप है ना रनवे ज्यादा यूज करते हैं एंड देन उसके बाद आप टेक ऑफ करते हैं. तो आपका जो सॉर्टी रेट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और आपका है ना मतलब टेक ऑफ टाइम बढ़ जाता है, रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है. बट अगेन जैगवार है ना मतलब इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट नहीं है, उनका काम स्पेसिफिक है, तो वो चीज चल जाती है. गुड थिंग इज विद जैगवार आप नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज आप एसा रेडार लगा रहे हैं उनके ऊपर, इनके एयर इनटेक के ऊपर आप स्टेल्थी पेंट, जो रेडार रेडार एब्जॉर्बेंट पेंट है वो लगा रहे हैं आप. साइमल्टेनियसली हम लोग सुनने सुनने में आया था कि बीच में कि इसके ऊपर लैमिनेट भी लगाया गया है. तो देयर आर थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग विद जैगवार. फन फैक्ट ये है कि जो टेक्नोलॉजी आपके आने वाले फ्यूचर फाइटर जेट्स में जाने वाली है, वो ऑलरेडी धीरे धीरे करके हर एक जेट के ऊपर आप टेस्ट कर ही ले रहे हैं. तो वो चीज हुई है जैगवार के साथ में, एंड दिस इज व्हाई पावर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है आपकी. इंजन का पावर कम नहीं हुआ है, एयरक्राफ्ट का वजन बढ़ गया. अब ये बहुत बड़ी बात आपने क्लैरिफाई की है कि इंजन के पावर कम नहीं हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो उसकी इनसफिशिएंसी क्रिएट हो गई है बेसिकली. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो ये और दूसरा अपना एक 40 किलो न्यूटन का हाल बना रहे थे HTF 40, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. उसका भी कुछ बहुत टाइम से कुछ हमने सुना नहीं कि मेरे ख्याल में जैगवार के लिए ही बना रहे थे शायद नहीं, 40 किलो न्यूटन का इंजन.
एक्चुअली क्या था, एचएएल के पास में कुछ खुद का सेटअप था। सो व्हाट दे वांटेड टू डू वाज कि अपना खुद का एक इंजन हम लोग बनाकर इस कैटेगरी में बनाकर रेडी करते हैं फॉर अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बात हो रही थी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर बनाया जाएगा। उसके लिए ये लोग इंजन के ऊपर पहले से काम करना शुरू कर चुके थे कि वी ऑल नो दैट इंजन टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। उसके बाद में ये चीज आप सभी को पता है कि इंडिया में इंजन की टेस्ट फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है। स्पेसिफिकली टर्बो फैन इंजन के लिए हम लोगों के पास में किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द लिमिटेड फैसिलिटी जो आपके पास जीटीआरई में है, वो भी ग्राउंड बेस्ड टेस्ट के लिए। ठीक है। हाई एल्टीट्यूड के लिए कुछ अभी रिसेंटली कुछ कॉन्वर्सेशन चला है, फंड्स आए कि नहीं आए उसकी क्लैरिटी नहीं। तो एचएएल ने क्या किया था, ग्राउंड टेस्टिंग करने के लिए इन लोगों ने ये एचटीएफई बनाया था, और वो उसमें आफ्टर बर्निंग नहीं था, सेगमेंट नहीं था। बाद में आइडिया था कि एचटीएफई 25 किलो न्यूटन ड्राई वेरिएंट अगर कर रहा है तो आफ्टर बर्नर डाल के आप 40 किलो न्यूटन तक ले जा सकते हैं। फिर आपने ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिसाइड कर लिया कि हम लोग हनीवेल के साथ में जाने वाले हैं, एंड देन वो प्रोग्राम वहां पर आगे नहीं बढ़ाया। और उसके बाद फिर हम लोग वापस आए नहीं इस प्रोग्राम के ऊपर कि डू वी रियली नीड अ इंडिजिनस सॉल्यूशन। फिर उसके बाद अब ये चीज भी है कि बाय 2035 यू वांट टू रिटायर जैगवार्स। तो क्या वो इन्वेस्टमेंट का है ना, मतलब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है कि नहीं, तो वहां पर करके आप अपने इंजन प्रोग्राम को फंड ही नहीं कर पाए। इट्स इजी टू से कि है ना, मतलब हम लोग है ना नहीं कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को करना चाहिए था। बट कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है ना, आपको वहां पर पैसे डालने पड़ते हैं। और हम लोग है ना हमेशा कोशिश करते हैं कि इजी रूट मिल जाए, बाहर से आ जाए, वो वहीं पे है ना मतलब लग के रह जाता है और कुछ नहीं। वो तो वैसे देखा जाए तो इसको इंजन वाले प्रोग्राम को अगर मतलब हम तो खैर अपनी तरफ से बोलते ही रहते हैं, पर इसको एज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए था आज से मेरे ख्याल में 10 साल पहले ही। नो मैटर आप व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कुड हैव गॉन इन, और ये मतलब इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, सेल्फ सफिशिएंसी की सोच भी नहीं सकते हैं अगर आपने इंजन नहीं बनाया अपना तो। आप है ना, मतलब देखिए, एक चीज मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि आप एक 73 किलो न्यूटन का इंजन बनाकर उसको फ्लाइट टेस्ट करा के रखे हुए हैं। ठीक है। जस्ट बिकॉज वो 73 किलो न्यूटन पर मैक्स आउट हो जाता है, आपने कोई एप्लीकेशन ही नहीं क्रिएट की कि उसको टेस्ट किया जा सके। फन फैक्ट ये है कि कावेरी जो इंजन एरो इंजन है वो 73 किलो न्यूटन आपका जनरेट कर सकता है, लेकिन अभी भी कोई ये तो थैंकफुली आई वाज लकी इनफ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद सिद्दीकी सर। तो उस वजह से मुझे समझ में आया, उन्होंने हम लोग काफी देर तक एलॉबरेट तरीके से बात कर रहे थे। मैं उनको प्रोब कर करके बोल रहा था, सर ब्लेड फेंक रहा है ये वो, बोले यार पुरानी बातें हैं। एंड ही सेड दैट कि इसको ना डाल सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसको आप है ना किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट करो और आप यूज कर सकते हैं। एंड हम लोगों के पास में सिस्टम ही नहीं था जिसके ऊपर हम लोग सुपरसोनिक तरीके से उसको टेस्ट कर सके। तो और उसका अप्रूवल नहीं मिला। तो 14 साल से आप है ना इंजन के ऊपर आपने किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। 14 साल, 14 ईयर्स बड़ा टाइम होता है। और वो जो स्किल्स उन लोगों ने कावेरी के साथ में बनाई थी, वो लूज ना हो जाए, इस वजह से लॉबी किया गया था कि ना ड्राई कावेरी बना लिया जाए। तो ये अब ऐसे अगर आप देखो ना तो बोलते हैं ना कि ना मतलब डीआरडीओ तो फ्रस्ट्रेटिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है। बस वही है। और फन फैक्ट, सिद्दीकी सर को क्या मिलेगा, मतलब अगर अगर वो उनके अंदर वो ना हो कि कुछ भी इंडिया नहीं। के पास में अपना है ना मतलब खुद का इंजन होना चाहिए। उनका वो ड्रीम है, इस वजह से वो आदमी है ना मतलब अपनी जान लगाए हुए हैं। और हम लोगों को है ना मतलब सेकंड्स नहीं लगते हैं जाके क्वेश्चन करने लगते हैं कि ना मतलब है ना कामचोर एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और नहीं, इसी गलत वजह से बात है। कामचोर नहीं सर, I still remember some of the people in the space also, मतलब अरे नहीं I नहीं नहीं, shouldn't be saying वो this but मत हाँ करो, वो मत करो, वो मत करो। हाँ, बट नहीं दैट वाज बोलता हूँ मैं बैड। क्या हुआ था। वो तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया था। मेरा है ना मतलब है ना, मैं सच बोल रहा हूँ एंड आई वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड कि है ना मैं जितनी रेस्पेक्ट है ना गुरु कलाम की करता था ना, मैं उतनी ही रेस्पेक्ट सिद्दीकी सर की करता हूँ। तो वो जो बातें लोग करते हैं ना कि ना मतलब एक कलर से लोग बिलोंग करते हैं ऑल दैट, दैट इज सो बैड। इस चीज में मत बोलिए प्लीज, फॉर हेवन सेक।
नहीं, और एक चीज और है, हाँ, अगर आप देखो पूरे वर्ल्ड वाइड, एक तो पहली बात जेट इंजन बनाना अभी भी इतना निश है कि सब चीज लोगों ने बना ली, जेट इंजन अभी तक परफेक्ट मतलब बहुत कम देश बना पाए। दूसरी चीज क्या है, आप अमेरिका को उठा के देख लो, 404 आज से 15-20 साल पहले कितना प्रोड्यूस करता था, उसी को डेवलप कर करके उन्होंने 414 भी बनाया, 404 को भी डेवलप करके उसका थ्रस्ट बढ़ाया। तो कभी आप थोड़ा मौका तो दोगे, पहले दिन से परफेक्ट प्रोडक्ट कैसे मिल जाएगा? वो चीज है। और दूसरा चीज, एक चीज ये है कि देखो यूएस में जो चीजें बन रही हैं, मतलब प्रैट एंड विटनी, जीई दोनों है ना, मतलब वो काम करते हैं। और यू विल नॉट बिलीव इट, बहुत बार ऐसा होता है जीई और प्रैट एंड विटनी दोनों साथ में मिलकर भी काम करते हैं। और एक एक चीज ये है कि हम लोगों के यहाँ पर हम लोग सब लोगों को साथ में नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद ही भरोसा नहीं कर पाए हैं कि जीटीआरई का जो ये जो इंजन है, इसको आप कहीं पर यूज कर सकते हैं। आपने ना कावेरी मरीन शुरू किया, उसके बाद में ना आपने डिसाइड किया कि राजपूत को हम लोग रिटायर कर देंगे, तो छोड़ो रहने दो। छोड़ो रहने दो क्या होता है? और फिर आपको याद आता है जब रशिया यूक्रेन होता है, यूक्रेन में इंजन मतलब फंस जाते हैं, तब आपको याद आता है कि नहीं यार, इंजन पे है ना काम होना चाहिए, मरीन इंजन के ऊपर काम होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता ना। मैं बहुत पहले ना एक आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना होगा, चाचा चौधरी की एक स्टोरी हुआ करती थी। उसमें वो चोर को एक को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं या तो तुमको 100 जूते पड़ेंगे या तुमको 100 प्याज खाने पड़ेंगे। हाँ 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 राइट? वो हाँ। 5 प्याज खाता है, उसके बाद बोलता है नहीं सर, जूते ही मार लो। फिर 5 जूते खाता है तो बोलता है नहीं नहीं, मैं प्याज ही खा लूंगा। ऐसे करके वो 100 जूते भी खाता है और 100 प्याज भी। हम लोगों के वही हाल है। अच्छा, एक चीज और बताइए, फिर मैंने काफी समय ले लिया आपका। मुझे ये चीज बताइए कि अभी बात हो रही है कि सुखोई को एज अ टेस्ट बेड यूज करेंगे लोग इंजन के लिए। पहली चीज तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि इस तरह का कोई ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट का हुआ होगा, पर मेरी जानकारी में नहीं आया कि इसको यूज किया। और दूसरी चीज मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको ये एज अ इंजन ही लगा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, या जैसे बड़े जहाजों में माउंट करते हैं इंजन, उस तरह का कोई सेटअप होगा, क्योंकि दोनों ही आई एम नहीं, नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड। ओके। तो दो चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप है ना, मतलब जब एक एयर टेस्ट एक कर मिनट लेते हैं। सुबोध, sorry, I would like to add one more thing is that is यूएस और यूरोप के पास में ना एक उनकी गवर्नमेंट के पास में एक एम था, एक विजन था, राइट? जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू both Europe and US went into a research and development drive, हम्म, meaning they wanted not just in fighter aircraft but in civilian market as well, right? उन्होंने एक जेट एयरक्राफ्ट डेवलप किया, दैट इज 737, then 747 and then respective families of it, करेक्ट? हमारी गवर्नमेंट कोई भी हो, आई एम नॉट टेकिंग साइड ऑफ एनीवन, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स रही है सब ने अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जेट इंजन को हमेशा हमने साइड में ही रखा है कि दैट इज नॉट आवर एक्सपर्टाइज, so that somewhere we lack, our और ये governments तब lack है aim and vision. जब आपका बनाया हुआ जहाज मरूद जो था वो इंजन की वजह से ही फेल हुआ। बाकी जहाज तो Exactly. बहुत बढ़िया था, लेकिन इंजन कोई देने को राजी नहीं था, तो आप वही उसका मार्क वन भी नहीं क्रॉस कर पाता था वो, नहीं ऐसा नहीं बढ़िया था, जहाज राजी था। राजी नहीं था। वी टेस्टेड मिग 19 engine as well, evaluated, not exactly tested, but the specific fuel consumption of that engine was way too much, और मरूद का फ्यूल कैपेसिटी उतना नहीं था। मतलब ऐसे गिव अप नहीं किया था, लेकिन हाँ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे कि यू कुडंट परस्यू इट फर्दर। तो वो भी एक चीज है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड देन एवरीथिंग वेंट इनटू गार्बेज। मतलब हमने अगर जेट इंजन का, अगर मैं जिसको बोलते हैं ना, टेस्ट भी किया होगा तो इट वाज साइडलाइंड। भाई आज हमारे पास में जेट इंजन होता तो मे बी द रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दैट वी आर मे बी डिजाइनिंग और डेवलपिंग वट एवर, वो 10 साल पहले टाइम पे आ जाते। करेक्ट अरे करेक्ट। भाई, बट इंडिपेंडेंस ठीक के है ना? बाद तो आधा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ही आया और केजीबी ने खा लिया था। अंडरस्टूड, दैट आई एग्री ऑन दैट। ठीक है ना? अभी अभी आप देखो, इंडिगो,
एयर इंडिया, ये दोनों ने मिलके एटलीस्ट 1100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया भाई। Now you can imagine how much potential we lost. Correct. Most of them are only A320s or Boeing 737s. And I'll tell you one more thing. अगर है ना over to you, Subodh. Yeah, Thank you for letting me speak. I'll let you know one more thing. अगर कोई बैंगलोर में है तो वो एक बार है ना मतलब एयरपोर्ट के आसपास टहल कर आए तो उसको दिखाई पड़ेगा गो एयर और इंडिगो के कितने एयरक्राफ्ट वहां खड़े हुए हैं। एंड दैट इज बिकॉज प्रैट एंड विटनी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी सप्लाई चेन। तो ऑल दिस इज बिकॉज हम लोग है ना मतलब हम लोगों के पास में जब अपॉर्चुनिटी थी तो हम लोगों ने उसको प्रॉब्ली लेवरेज नहीं किया और कुछ। अरे बहुत सारी चीजें आप मेरे को वो बता रहे थे ना, इंजन इंस्टॉल किया है कि वैसा अच्छा, बता रहे थे। ओके, सो Su-30 MKI वाला केस देखिए, नॉर्मली आप है ना जब इंजन को टेस्ट करते हैं उसके 3 फेजेस होते हैं। ग्राउंड टेस्ट आप करते हैं, उसके बाद सिमुलेटेड हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग होती है जिसको हैक में किया जाता है, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में। और फिर उसके बाद जब वहां पर वो सर्टिफाई हो जाता है तब आप उसको फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर माउंट करते हैं। प्रैक्टिकली जब आपका इंजन पूरी तरीके से तैयार है तभी आप उसको फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर माउंट कर सकते हैं, राइट? तो जब कावेरी इंजन आपने माउंट किया था IL-76 के ऊपर, बाय दैट टाइम इट वाज ऑल रेडी, ऑल सेट, जस्ट दैट हाई एल्टीट्यूड पर जाकर आप मैक्स थ्रस्ट जनरेट कर पाए थे, वो 73 किलो न्यूटन था, राइट? अब आइडिया क्या है कि अगर वो वही चीज अगर आपके एप्लीकेशन में जाती, राइट, अगर तेजस के ऊपर आप डालते उसको, तो पहले उसको टैक्सी करते, हाई स्पीड टैक्सी करते, फिर उसको बोलते हैं ना सबसोनिक स्पीड पे टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में उसको ट्रांससोनिक टेस्ट करते हैं, एंड देन दे वुड हैव गॉन सुपरसोनिक। लेकिन यहाँ पर आपके पास में एप्लीकेशन नहीं है, राइट? कहाँ पर आप है ना कावेरी को माउंट करेंगे, राइट? तो इस वजह से आइडिया था कि हम लोगों को ये इंजन सर्टिफाई कराना है। नाउ व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इज प्लग अ इंजन onto a Su-30 MKI। पहले उनका आइडिया था कि MiG-29 बिकॉज वहां पर शेप एंड साइज के हिसाब से इट मेक्स सेंस, बट MiG-29 आर लिमिटेड इन नंबर। एडिशनली एक सिंगल RD-33 कैनॉट टेक द एयरक्राफ्ट टू ट्रांससोनिक स्पीड्स, ठीक है? तो मतलब आइडिया इनका यहाँ पर Su-30 MKI के साथ में ये है कि अगर Su-30 MKI का एक इंजन और दूसरा प्लग्ड कावेरी इंजन है तो इट कैन गो टू सुपरसोनिक स्पीड्स। दिस इज हाउ दे विल टेस्ट, बिकॉज यहाँ पर आपके पास में एप्लीकेशन सिस्टम नहीं है। जैसा कि आपने बोला कि ऐसा कोई सिस्टम हम लोगों ने कहीं और नहीं देखा है, नेचुरली नहीं देखा है, क्योंकि अगर आप जीई का इंजन की बात करेंगे जो F414 इंजन को टेस्ट करना शुरू किया था, तो बाय दैट टाइम यू हैड सुपर हॉर्नेट्स, राइट? तो आपने सुपर हॉर्नेट के ऊपर माउंट करके उसको टेस्ट करना शुरू किया। सेम गोज विथ रफाल। रफाल में M88 जब आपने टेस्ट करना शुरू किया, इनिशियल यूनिट जो आपने टेस्ट किए थे रफाल के, वो GE F404 में टेस्ट किए थे, फिर बाद में आपने ना M88 माउंट करके फिर टेस्ट करना शुरू किया। यहाँ पर हम लोगों के पास में एप्लीकेशन के लिए सिस्टम ही नहीं था, तो इस वजह से वो प्रपोजल था कि लेट्स माउंट इट ऑन Su-30 MKI। हाउएवर अभी एक थैंकफुली किसी को ना मतलब ये समझ में आ गया है कि लेट्स माउंट अ कावेरी ऑन अ तेजस। तो उसके लिए भी अप्रूवल्स आ चुके हैं और कुछ टेंडर्स भी निकले हैं। तो दे आर मेकिंग अ कावेरी इंजन दैट विल बी माउंटेड ऑन तेजस एयरक्राफ्ट और उसको वो लोग टेस्ट करेंगे। तो but the thing is, like, idea is to make sure that Kaveri is available when you are going to re-engine the baseline Tejas, right? तो यहाँ से 15 साल 20 साल बाद में जब आप इनको री-इंजन करेंगे तब तक अवेलेबल होना चाहिए, सर्टिफाई होना चाहिए, प्रोडक्शन में जा चुका होना चाहिए। दैट्स द आइडिया। ओके, अच्छा तेजस का एक ये है कहीं भी पप्पू भाई देखो एक क्वेश्चन तुमने पूछ लिया। एक और टेस्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अजीज भाई का। सर और भी कितने हाँ पता ठीक है, ले लो, कितना ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से और मेरे पास अभी वापस आ जाएंगे पप्पू भाई, वापस आ जाएंगे हम लोग आपके पास, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, उस टाइम पे योजना
योजक, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। हेलो एवरीवन। योजक नहीं। हाय। मेरा क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली रिक्वेस्ट है कि आपने ये अपना जो रिकॉर्डिंग है आप अगर यूट्यूब पे डाल दोगे तो बेस्ट रहेगा। हाँ, पिछली बार रिकॉर्ड नहीं किया था, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अमन। क्योंकि एक्चुअली स्पॉन्टेनियस हो जाता है और नोटिस में आता नहीं है, और पिछली बार मैंने मिस कर दिया था। पिछली बार मैंने भी मिस कर दिया था एक्चुअली। मैं ओके, भी नहीं था थैंक वो यू। स्पेस में। हेलो सुबोध सर। हाँ जी, बोलिए सर। सर जो जीटीआर कावेरी का क्वेश्चन था Su-30 MKI के लिए, तो वो ओरिएंटेशन पूछ रहे थे सर कि प्लग इन होगा कि पायलॉन पे लगेगा, क्योंकि ब्रह्मोस एनजी से तो कम ही वेट है जीटीआर हाँ, कावेरी का। तो नहीं, इनका आइडिया था कि ना मतलब इसको प्लग इन करेंगे, पायलन के ऊपर माउंट नहीं करेंगे। मतलब प्रपोजल यही था कि उसको प्लग करेंगे, बट सिंस यू सेड कि है ना मतलब उसको कैरी किया जा सकता है, फैक्ट इज यस, बट आपको समझना पड़ेगा कि फिर उसके जो कंसीलिंग होगी वहां पर दिक्कत आएगा। आपको एक एयर इनटेक टाइप कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, फिर बाउंड्री लेयर्स को एड्रेस करना पड़ेगा, तो कई चीजें आ जाएंगी। एंड दिस इज व्हाई इट मेक्स सेंस टू प्लग दैट इंजन। अब कैसे वो लोग मैच करेंगे, दैट विल बी अ ट्रिकी पार्ट। अगर इनटेक को लेकर आप मैच करने की बात करेंगे, दैट विल बी रियली ट्रिकी, इट वोंट बी इजी। चलो, थैंक यू सर, गुड नाइट। चीयर्स, गुड नाइट। हेलो हेलो हाय। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी। सर मेरे को एक क्वेश्चन था, मतलब रेडार्स के बारे में, स्पेसिफिकली वो विशाखापट्टनम और INS विक्रांत में नहीं है, ये ELM-22 MF स्टार, उसके लिए था। तो हम अपना रेडार्स क्यों डेवलप नहीं कर रहे हैं? हमारे पास भी है ना कैपेबिलिटीज। तो अब तो आपके पास में ऑप्शंस हैं। देखिए, फैक्ट ये है कि जब विशाखापट्टनम बना रहे थे आप, तब आप ये सिस्टम्स ऑलरेडी आपके पास में ऑफ द शेल्फ नहीं कह सकते, लेकिन प्रोडक्शन में थे। तो आपने ना मतलब इजी ऑप्शन, जल्दी ऑप्शन यही उठाया और आपने लगा दिया। फ्यूचर रेडार्स, फ्यूचर सिस्टम्स के ऊपर है ना डिफरेंट रेडार्स आएंगे, क्योंकि अब तो है ना मतलब आपके पास में ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, तो उस हिसाब से ना फ्यूचर की जो आपकी शिप्स होंगे, मोस्ट लाइकली वहां पर डिफरेंट रेडार आ सकते हैं। और नीलगिरी क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के फॉलो ऑन ऑर्डर्स होंगे आगे? मैंने ये क्वेश्चन नेवी चीफ से पूछा था अभी, जब ये नेवी चीफ यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने बोला था कि इसके ऊपर वो डिस्कशन चल रही है, और उनके यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस चल रही है कि क्या यू नो अपग्रेडेड सिस्टम ऑर्डर करने हैं या फॉलो ऑन करना है। तो उस पर उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है। और NGD वगैरह के तो प्लानिंग चल ही रही है ना अभी? प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसका डिजाइन वर्क शुरू नहीं हुआ है। मतलब वही नीश अर्ली स्टेजेस में जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो हुआ है, लेकिन मतलब ऑफिशियली तो देखिए, जब तक कोई चीज है ना मतलब DAC से अप्रूव नहीं हो जाती है, तब तक बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा उसमें। ओके, थैंक यू। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ जी, बोलिए। हाँ, मुझे डाउट था कि अभी हमारा प्लान है कावेरी को 70 से 80 किलो न्यूटन करना, तो उसके लिए हमको प्रॉपर फीडबैक और टेलीमेट्री लगेगा ना उसके फ्लाइट टेस्टिंग पे। तो क्या तेजस और Su-30 के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो हमको इंजन का टेलीमेट्री दे सकते हैं? क्योंकि उसके लिए तो फ्लाइंग टेस्ट बेड लगेगा ना प्रॉपर IL-76। देखिए, ये जो आपको डेटा चाहिए था, जिस डेटा की आप बात कर रहे हैं, वो डेटा आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। What you are trying to get here is सुपरसोनिक स्पीड्स पर है ना मतलब आपको क्या पैरामीटर्स मिलते हैं। पैरामीटर्स मॉनिटर करने के लिए Su-30 MKI में वही मॉडिफिकेशन जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो वो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो उसके साथ में ऐड किए जा सकते हैं। दिस इज वाई Su-30 MKI का जो प्रपोजल है वो आगे बढ़ पाया था। तो दैट वो उसको लेकर ड्यू डिलिजेंस की जा चुकी है कि हाँ, किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सर। यस सर, सुबोध सर, नमस्ते। बोलिए सर। नमस्कार। हाँ सर यही पूछना था। ये हम डेफिनेटली UAV को UCAV बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर सर? तपस हो या फिर आर्चर हो जाए। Why are we investing in piston based UCAV
when we can use that, utilize our resources effectively in making UCAVs on मतलब स्विफ्ट और घातक को जब हम मतलब वहां पे हम अपने रिसोर्सेज क्यों नहीं फोकस कर रहे, पिस्टन बेस पे क्यों हम लोग ध्यान दे रहे? देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है, पिस्टन बेस्ड सिस्टम काफी चीप होता है, तो उसको आप ना मतलब ज्यादा नंबर में बनाकर आप छोड़ सकते हैं। और आइडिया ये है कि ना मतलब जैसे आर्चर है तो अ, अगर आपके आर्चर 2-4 गिर भी जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक घातक गिरता है या फिर आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बट अगर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट गिरता है जिसमें जेट इंजन है तो वो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। एडिशनली आपकी जो नीश टेक्नोलॉजी है वो भी एनिमी के पास जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पर। सो आइडिया है कि जब जो लो कॉस्ट एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर केवल आपको मॉनिटर करना है और या 2-4 टैंगोस को मारना है, तो इस तरीके के सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। नेवल एप्लीकेशन के लिए मतलब एंड्योरेंस चाहिए वहां पर है ना। आई थिंक दिस इज व्हाई नेवी इज लाइक, हमको तो ये रीपर का जो MQ-9B है जितना ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा है। क्योंकि इफ यू लुक एट दिस, आपके P8I नेपट्यून्स हैं, अब MH-60R भी आ गए हैं और फिर उसके बाद में ये भी हैं। तो ये सारे के सारे जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो ऑर्केस्ट्रा वाली सबमरीन्स जो पीछे से आती हैं हम लोगों के यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं हो सकता फिर, राइट? Bhai, we haven't heard anything regarding our SSNs. No update, sorry, no update. अमन काफी ज्यादा डर No गया कि update. उसको लग रहा है कि मैं No सारी update. चीजें बाहर 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 निकाल देता हूँ। मैं श्रेयस No. मैं ना DM करता हूँ थोड़ी देर में। No, sir, sure. Nikhil Punia. Sure, sir. So आपकी आवाज ब्रेक कर रही है और मे बी मेरा नहीं सर, मेरे लिए भी ब्रेक हो रहा है आवाज। ओके, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो हमारे नेबर्स की बढ़ रही है, हमारी बस डिप्लेट होती जा रही है। निखिल भाई आपको क्वेश्चन दोबारा से पूछना पड़ेगा, आपकी शुरुआत की जितनी भी बातचीत हुई है वो हम लोगों को सुनाई नहीं थी। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा जब से जैसे इसमें डिफेंस में इंटरेस्ट आया तब से ऐसे बोले कि 42 थोड़े समय चाहिए अगर हमें ड्यूअल फ्रंट पे वॉर होती है कभी। बट अभी भी जब से हम देख रहे हैं तो मतलब एयरक्राफ्ट को हम निकाल ही रहे हैं, पुराने एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं। तो अभी स्क्वाड्रंस को वापस फिल करने के लिए बाहर से एयरक्राफ्ट ले रहे हैं या फिर इंडिया के जो जैसे तेजस है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान है, तो कैसे कर रहे हैं उसको 42 वापस कैसे करना है उसको? देखिए 42 है ना मतलब फ्रैंकली आइडियल कंडीशन है, वहां तक नहीं तो आप एटलीस्ट 35 यू वांट टू मेंटेन इस लेवल पर। और आइडियली थोड़े दिन पहले जो हम लोग 39 वाले लेवल पर जो जब हम लोग थे तो वहां तक तो हम लोग चाहते ही हैं, ठीक है। जो प्लान्स हैं आपके उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि अब तेजस का ना इन लोगों ने फॉलो ऑन ऑर्डर का प्लान किया था LCA Mark 1A का, बट GE कैन नॉट गिव यू मोर देन 20 engines a year। वो उन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि उनकी सप्लाई चेन सस्टेन नहीं कर पाएगी मोर देन 20 engines a year। ऑल्दो दूसरी भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि वॉल्वो भी GE का इंजन बनाता है। यही जो GE F404 है उसको एक स्पेसिफिक तरीके से बनाता है, तो आप उनकी सप्लाई चेन लेवरेज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए उसके लिए आपको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा और बिल मतलब एक ही चीज के लिए 2 अलग अलग बिल ऑफ मटेरियल हो जाएंगे, तो सप्लाई चेन के हिसाब से ये बड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। उसी तरीके से साउथ कोरिया भी है ना मतलब एक उनकी भी एक सप्लाई चेन है। तो आपको है ना क्या करना पड़ेगा कि अगर एक फॉलो ऑन ऑर्डर हो पाता है तो वो जो सप्लाई चेन्स हैं उसको आप टैप कर पाएंगे, पहला। दूसरा यह है कि MRFA हम लोग अगर आपको 45 वही 42 स्क्वाड्रंस चाहिए तो MRFA आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि लगभग 20-25 बिलियन डॉलर आपको है ना मतलब वहां पे लगाने हैं। और
अगर आप वहां पर पैसा लगाएंगे तो आप इंडिजिनस प्रोग्राम के ऊपर पैसा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप ये चीज क्लियर है, राइट? तो और फिर उसके बाद में आज की डेट में आप है ना एक ऐसे एयरक्राफ्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो जो मदर कंट्री में उसके रिप्लेसमेंट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो वो सब चीजें सोच के है ना, मतलब ये है कि क्या हमको 45 के लिए जाना है, या फिर हम लोगों फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हैं अपने आप को। तो बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स पूरी तरीके से आत्मनिर्भर मोड में, ऐसा लग रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि एमआरएफए की तरफ हम लोग जाएंगे अब। काफी लोगों ने वेट कर लिया आमका को लेकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुका है। अब यहाँ से है ना, मतलब हर 3 साल में आपको नया जेट दिखाई देगा भारत से निकलता हुआ। अच्छा, इट्स सो बोथ भैया's ओपिनियन, ठीक है। एडी का वही ओपिनियन है कि एमआरएफए होने वाला है, ये एक चीज हाँ, रख लेना। वही यही थोड़ा चीज है। डिफरेंस मैं आप लोगों को होगी। एक चीज ये क्लियर कर दूंगा कि तो ये चीज मैं कह रहा हूँ, मेरे जो ओपिनियंस हैं वो टीम मेंबर्स अग्री नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें रहती हैं जहां पर हम लोग खुद भी आपस में ना एक दूसरे को काउंटर करते रहते हैं। जैसे कि है ना, मतलब सबमरीन्स को लेकर है, तो हम लोग आधी टीम बोलती है कि हम लोगों को इंडिजिनस जाना चाहिए, आधी बोलती है कि यार टाइम भी है, तो वो भी देखना है। कई बार हम लोग है ना, मतलब चीजें बोलते हैं। मैं पर्सनली कई बार बोलता हूँ। आज ही है ना, मतलब मैंने ये जो तेजस वाला एक पोस्ट डाला था, आधे से ज्यादा टीम मेंबर्स वर लाइक स्टॉप डिफेंडिंग एचएएल। मैंने कहा भाई, मैंने तो 2 स्टोरीज है ना खाली पोस्ट की है, लेकिन दे वर लाइक आप डिफेंड कर रहे हो। तो हम लोगों का है ना, मतलब आपस में भी एक कॉन्ट्रडिक्शन होता रहता है। और ओके, सर एमसीए हाँ, पे क्या अपडेट है? सीसीएस का अप्रूवल आ गया, बट उसका किसका? क्या अपडेट एमसीए पे? देखिए, एएम सीसीएस का अप्रूवल आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना फंड्स रिलीज हो गए हैं। तो आपको है ना, मतलब ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब जाकर हम लोगों को डिटेल्स मिलेंगे। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है इन द मतलब सेंस? कुछ भी नहीं इन सेंस ये नहीं कि है ना, मतलब प्रोटोटाइप बनना शुरू हो गया, ये नहीं। बल्कहेड तो 2 साल पहले है ना, मतलब बनना शुरू हो गया था, हम लोगों को याद है। बल्कहेड के ऊपर काम हो चुका था। नया रेडार के ऊपर शुरू हो गया था इन लोगों का। विंग को लेकर एक टेंडर आया था। तो ऐसा है कि पहले से ये लोग तैयार बैठे हुए थे बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन आई थिंक जब तक वो फंड्स रिलीज नहीं होंगे तब तक आपके सप्लायर्स आपको चीजें सप्लाई नहीं करेंगे। तो लेट्स सी कि कब फंड्स रिलीज होते हैं, और उसके बाद कब ये चीजें मूव होती है। आई टेल यू समथिंग कि ना, मतलब हम अगर कुछ मूवमेंट होगा तो विल बी द फर्स्ट पीपल टू टेल यू कि है ना, मतलब हाँ भैया, आज एक स्क्रू नया खरीदा गया है। ठीक है, उस लेवल की डिटेल्स में हम लोग है ना, मतलब इसको ट्रैक कर रहे हैं। चलो सर, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। Cheers. सागर भाई, गो अहेड। सागर शर्मा। नमस्ते सुबोध नमस्कार। भाई। मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि एज फार एज नोइंग अवर सिविलियन, मेरे भाई भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, तो वो एनआईसी के लिए पहले काम किया करते थे, तो उसका मुझे थोड़ा आइडिया है कि गवर्नमेंट की जो सिविलियन एजेंसीज है उनकी साइबर सिक्योरिटी की हालत कैसी है। तो मेरा क्वेश्चन था कि वो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है उनका क्या सीन है, बिकॉज एज फार एज आई नो कि लाइक अब जैसे इंटीग्रेशन चल रहा है, तो लगता है कि जैसे अभी तक तो मतलब फोर्सेस सब साइलोज में वर्क करती थी, तो अब उनके जो आईटी सिस्टम्स हैं वो भी शायद एक दूसरे से इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो देन हमारी फिर डिफेंस में साइबर ऑफेंस और डिफेंस कैपेबिलिटीज कैसी हैं, बिकॉज एक बार एक न्यूज़ आई थी कि इसरो वगैरह में कुछ हैकिंग वगैरह हो गई थी, तो मुझे उसके बारे में जानना था। ओके, 2 चीजें हैं। देखिए, अपने यहाँ पर है ना, क्या है ना, मतलब इंडियन एयरफोर्स इस मामले में सबसे आगे है। उन लोगों ने शुरू किया था एफनेट करके एक सिस्टम है उनका। तो उनका है ना, मतलब स्पेस्ड नेटवर्क उन्होंने अपना क्रिएट किया था। और ये नेटवर्क के साथ में है ना, मतलब इस समय इंडियन
आर्मी भी अपना एक ऐसा ही कुछ क्रिएट कर रही है। फिर एफनेट के साथ में उन्होंने एक लेयर ऊपर और बनाई थी, और आप सभी को पता होगा IACCS जो सेट किया गया था। आर्मी इसी सेगमेंट में कुछ और क्रिएट कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज आकाशदीप। इस मोमेंट पर अगर हम लोग कहें कि ना मतलब पिछले 5 साल पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम लोग अगर जाएंगे तो स्पेसिफिक्स हो जाएंगे, ठीक है, पब्लिक फोरम के लिए वो सही नहीं है। लेकिन 5 साल पहले जो स्थिति थी वो अब स्थिति नहीं है, चीजें बेहतर हुई हैं, बट स्टिल दिस अ लॉट ऑफ स्कोप जहां पर चीजों को बेटर किया जा सकता है, स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी सेगमेंट में। अभी भी मतलब क्या बोल सकते हैं, आई कैन नॉट कॉल इट एज लूप होल, बट अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं, रिस्क अभी भी हैं, और सब कुछ मिटिगेट अभी तक नहीं किया गया है। आई थिंक एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सारे के सारे सिस्टम रेडी हो जाएंगे तो शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि दीज आर लाइक डेली ग्रोइंग थ्रेट्स। आज आपने ना मतलब एक चीज क्रिएट की है, कल आपका जो थ्रेट है वो भी ग्रो कर जाएगा, एंड दैट विल बी अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थ्रेट। तो आपको ना एजिलिटी चाहिए, एंड आई थिंक वो एक सेगमेंट है जहां पर चीजों को ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। और जैसे कि मैं एक अमेरिकन फर्म के लिए काम करता हूँ, तो अमेरिका में उनका एक मतलब साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस का फ्रेमवर्क रहता है अमेरिकन कंपनीज के लिए, जो उनको ऑडिटिंग वगैरह आपको पता है वो करते हैं वो लोग। इंडिया में तो मतलब आप फ्रेमवर्क तो छोड़िए, उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो अलग अलग मतलब कंपनीज में काम करते हैं, इंडिया के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, लेकिन तो उन लोगों को इंडियन डिफेंस फोर्सेस का एक फ्रेमवर्क है, आई थिंक आई हैव सम डिटेल्स अबाउट इट, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स ट्वीट करूंगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का एक फ्रेमवर्क है, और उसी को फिलहाल तीनों फोर्सेस मानते हैं। तीनों फोर्सेस का है? नहीं, तीनों फोर्सेस का है, एयरफोर्स का भी है, एयरफोर्स का है, उसको तीनों एयरफोर्स का फोर्सेस भी यूज है। कर हाँ, शायद तक आर्मी का एक नया फ्रेमवर्क कुछ तो आया है, मतलब ये थे हेलफायर सर थे, ही कैन एक्सप्लेन इट बेटर। हाँ, वो चले गए। और ये हमारे यहाँ मतलब L1 का मुझे समझ नहीं आता क्या इनका क्या माइंडसेट है, बिकॉज यार देखो मैंने एलिमेंट का सुनो 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 नहीं, अमन एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, सुनो प्लीज। नहीं, मैं L1 वाले पे मैं बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। सुन तो लो यार भाई, बात तो सुन ले यार अमन यार, ठीक मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि मैं ना मतलब इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, और हर जगह पर, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, हर जगह पर L1 ही इज द बेंचमार्क, हर जगह होता है। मैं आपका पॉइंट समझता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, L1 इज द बेंचमार्क, बट मैं आपको बता रहा था कि मेरे भाई भी मतलब साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, तो वो पहले विप्रो में काम करते थे, तो विप्रो के पास NIC का प्रोजेक्ट रहता था, तो उन्होंने वो L1 के चक्कर में एक ऐसी कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया अभी, ठीक है, NIC का, जिसके इन्वेस्टर हांगकांग की कंपनी, और आपको पता है हांगकांग में क्या चलता है। नहीं, तो देखिए एक चीज ये है कि अब आई डोंट नो कि किस तरीके से, क्योंकि स्पेसिफिक केस की डिटेल्स तो है नहीं मेरे पास, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ कि L1 में जब आप जाते हैं ना, तो उससे पहले ना एक टेक्निकल इवैल्यूएशन फेज होता है, राइट? तो आप है ना, जो शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स हैं वो सारे के सारे आपकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, थ्योरेटिकली तो यही हुई ना बात। उसके बाद है ना आप L1 डिसाइड करते हैं। अगर वो जो शॉर्टलिस्टिंग फेज है वहां पर आपने गड़बड़ी की है, सही तरीके से शॉर्टलिस्ट नहीं किया आपने, ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, तो आप L1 के ऊपर वो नहीं फोड़ सकते ना। नहीं, तो ये तो गलत बात हुई। मतलब इशू ये था ना, क्योंकि आप देखो देखो जो भी टेंडर होते हैं ना, जो भी टेंडर होते हैं उसमें स्पेसिफिक अमन योर वॉइस इज मेंशन किया जाता है कि जहां से भी पूरी तरीके से आवाज टूट रही है टेंडर। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज, पूरी तरीके से टूट रही है। अरे यार अब तो नहीं टूटनी चाहिए, अब आ रही है? हाँ, अब बेटर। हाँ, तो देखो क्या होता है कि जितने भी टेंडर प्रोसेस होते हैं, जब भी आप उसमें अप्लाई करते हो तो उसमें एक मेंशन कॉलम में दिया जाता है कि आप कहाँ से टेक्नोलॉजी ले रहे हो, अगर आपकी इन हाउस है या फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो किसी किसी प्रोजेक्ट में कोई कोई स्टेट से बैन होता है, ठीक है,
जैसे अगर मान लो कोई भी कामी का है तो इसमें दिया गया होगा चाइनीज कंपोनेंट्स आपकी कितना है, आप कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो, वो सब आपको मेंशन करना पड़ता है। तो एनआईसी का भी कोई एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें मेंशन होगा कि ठीक है वी आर अलाउइंग दीज कंपनीज और ओरिजिन ऑफ कंट्री टू पार्टिसिपेट इन इट। तो उसपे कोई L1 का वो बट प्रॉब्लम नहीं है, इशू ठीक है। इशू ये है ना, वो जो मीन्स मैं जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ एनआईसी के, वो आई मीन उसके थ्रू ही सारा इन्फॉर्मेशन इधर उधर पास ऑन होता है गवर्नमेंट का, विद इन गवर्नमेंट का। तो अभी ऐसे मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के लिए भी हम अगर L1 पॉइंट पे जाते हैं और फिर भी उसकी आई मीन अब उन्होंने चेकिंग करी होगी, मैं समझ सकता हूँ। बट फिर भी मतलब ऐसा तो कुछ पॉइंट ऐसे होने चाहिए ना कि जहाँ पे कैपेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एज कम्पेयर टू प्राइस। नहीं देखो, एक चीज अगेन, अगर आपके ना मतलब जो शॉर्टलिस्टिंग फेज में अगर आपके वेंडर्स 3 वेंडर्स हैं, अब वही आपको ना मतलब ओवर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम लोगों ने ना मतलब जब MMRCA किया था तो हम लोगों ने यूरोफाइटर टाइफून और रफाल को शॉर्टलिस्ट किया था। अब उसमें रफाल वाज L1, राइट? तो अब आप है ना मतलब ये नहीं, उस लेवल पर ये नहीं बोल सकते थे कि रफाल है ना मतलब कम केपेबल है और टाइफून वाज मोर केपेबल, या फिर अदर वे अराउंड। तो आपकी जो टेक्निकल इवैल्यूएशन फेज है, वहां पर अगर आपने ना मतलब ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर नहीं की है, दैट इज कि कितना अलाउड चाइनीज कंपोनेंट अलाउड थे कि नहीं थे, अगर अगर थे तो क्यों थे, और अगर आपने अलाउ किया है तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्या आपने उसको उसके ड्यू डिलिजेंस किए थे कि नहीं किए थे, क्या जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उसके साथ में किस तरीके के आपने चेक एंड बैलेंसेस डाले हुए हैं। जब तक आपके पास में वो सारी डिटेल्स नहीं है तब तक आप है ना मतलब प्रैक्टिकली उसके बारे में ओपिनियन नहीं बना सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एज एन इंडियन मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी कंपोनेंट मतलब चाइनीज हो। लेकिन फन फैक्ट ये है कि आप ना भी चाहते हुए भी आपके हर कितना एक वर्ड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पर आ मतलब ही जाता आप आईफोन लेकर आते हैं अमेरिकन है करके, यू नो कि वो साला चाइना में से, तो है। राइट राइट। फिर वो चीज है ना है और मतलब इट्स नॉट जस्ट इंडियाज प्रॉब्लम। बाहर भी जो कंपनीज काम करें, मेरी कंपनी के साथ में भी परेशानी है। हम लोग भी है ना मतलब जब भी हम प्रोक्योरमेंट वाले बंदों से बात करते हैं तो बेचारे यही चीज बोलते हैं कि यार कैसे अवॉइड करें उनको, तरीका ही नहीं है। राइट राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओके देन इंडिया की मतलब जो साइबर अवेयरनेस है जनरल पॉपुलेशन की, वो मतलब बहुत क्या अवेयरनेस बताऊँ, तो ना कम के है यार, बराबर ही है। ये बात तो मैं आपकी पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि साइबर अवेयरनेस हम सभी की कम है। मैं अपनी खुद की भी बात कर रहा हूँ कि ना मतलब मेरी खुद की ना कई अभी रिसेंटली ना मतलब एक थ्रेट आया था मुझे। वो बंदा मुझे ट्रैक कर गया, मतलब you'll नॉट बिलीव इट, मैं जहां पे मूव कर रहा था वो बंदा मुझे ट्रैक कर पा रहा था। एंड उसके बाद में जब पूरा ना डिटेल्स, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफी हाई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो गए थे। उन लोगों ने जब मुझे ट्रैक मतलब वो चीज पता की तो मेरी कार की बग की हुई थी उन्होंने। ओ वैसा। तो दैट वाज डन एट द सर्विस सेंटर। तो ओह इस लेवल पर चीजें हो जाती। राइट राइट। ओके देन विश्वजीत है, गो अहेड भाई, आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सुबोध भाई। हेलो, हेलो हाय हाय, आई कैन हियर यू ब्रो। सर, बी फैन सर, आपको बस अरे यही सही, बोलने के लिए किए थे थैंक यू सो मच। सर। एक्चुअली क्या है सर कि 2-3 क्वेश्चन रहता है, जैसे हम लोग को इसके बारे में सच में बताएं तो ज्यादा जानकारी नहीं है। लास्ट 2-2.5 साल से आपका जब वीडियो देखना शुरू किए तब इस सेक्टर में थोड़ा सा मतलब कि इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो अभी बस क्या होता है कि लगातार आपका वीडियो मतलब कि चैनल फॉलो करते हैं, सारा चीज ट्विटर सब देखते हैं, तो मतलब बहुत उम्मीद है, बहुत भरोसा भी हो गया आपके सारी चीज पे। तो 2-3 चीज होता है कि देखते देखते क्यूरियोसिटी आ जाता है कि जैसे कि पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि एक्चुअली जो 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन का जो फर्क होगा वो होगा क्या, मतलब सिर्फ स्टेल्दी को होगा या और क्या क्या है जो मेन मेन पॉइंट हो सकते हैं, बहुत मतलब गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैंने जब चैनल शुरू किया था तो एग्जैक्टली इसी स्पेसिफिक
ऑडियंस के लिए किया था, क्योंकि या तो जिस समय हम लोगों ने चैनल शुरू किया था, या तो बहुत हाई एंड चैनल्स हुआ करते थे जो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों को कर देते थे। अमित भाई का जो चैनल हुआ करता था डिफेंस डिकोड, वहां पर अमित भाई बहुत ज्यादा टेक्निकल कर देते थे। मैंने अमित को बोला भी था, मैं मिला था अमित से, तो मैंने बोला भी था यार बहुत टेक्निकल कर देते हो। एज एन इंजीनियर आई थिंक कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आसपास बाकी सभी को नहीं समझ आएगा। एंड ही वाज लाइक नहीं, मेरा ऐसा है तो ऐसा। बट ही वाज लाइक आई स्टिल मिस हिम कि वो रेगुलरली अगर चीजों को कर पाते तो हम लोगों के लिए आसान हो जाता था, क्योंकि एक नरेटिव जब हम लोग बिल्ड करते हैं तो 2-4 लोग मिलकर जब बिल्ड करो तो ज्यादा आसान हो जाता है। Yeah. वो एक चीज हो गई। देन ऑन योर क्वेश्चन कि देखिए, 4th जनरेशन फाइटर जेट बनाए गए थे। वो हम लोगों को पता है कि आपके जो Su-30 और F-16 और F-15 ये सब आपके 4th जनरेशन फाइटर जेट्स थे। और उसके बाद में 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाए गए जो स्टेल्दी फाइटर जेट्स थे। दैट इज योर F-35 और F-22 रैप्टर और ये सब। तो आइडिया क्या था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रियलाइज किया गया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको रैप्टर की जरूरत नहीं है और लाइटनिंग 2 की जरूरत नहीं है। वहां पर आप है ना F-16 और F-15 से काम चला सकते हैं। तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग कि इन फाइटर जेट से वो टेक्नोलॉजी F-16 और F-15 तक लाना शुरू कर दिए। जैसे कि आपका एसा रेडार, गैलियम आर्सनाइड वाला पुराना वाला, अभी तो नाइट्राइड में आ गया। तो एसा रेडार, फिर जो यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट वगैरह आने लगे। फिर आपके ना मतलब जो कॉकपिट को फुल ग्लास कॉकपिट कर दिया गया। तो ये सब 5th जनरेशन से आना शुरू हुआ। तो आइडिया था कि ये बोलना कि ये फाइटर जेट्स 4th जनरेशन से आगे जा चुके हैं, राइट। अब ये नो लॉन्गर 4th जनरेशन है। इस वजह से आपने एक नई जनरेशन बनाई, जिसको ना मतलब कॉइन की वो टर्म, और जिसको आपने 4.5 जनरेशन कहना शुरू कर दिया। तो ये कोई वो नहीं है कि ना मतलब ये चीजें होती हैं तो 4th जनरेशन है, और ये चीजें हैं तो 5th जनरेशन है। चाइना के उसके उनके जो फाइटर जेट्स हैं, तो उसके हिसाब से JF-17 थंडर जो बेसलाइन सिस्टम था वो 3rd जनरेशन फाइटर जेट। अगर चाइना के वो उठाकर आप देखेंगे, वो लोग J-10C को 4th जनरेशन फाइटर जेट बोलते हैं, और फिर उसके बाद उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट आता है ये J-20। तो उनके ना मतलब डेफिनेशन अलग है। फिर उसके बाद है ना मतलब जैसा मैंने बोला कि यूएस की जो डेफिनेशन है वो 4th जनरेशन थी, फिर उसके बाद 5th जनरेशन थी। तो 5th जनरेशन की टेक लेकर आए और 4th जनरेशन में डाली तो वो 4.5 बन गया। तो कुछ उसी तरीके के सिस्टम्स आपके रफाल और यूरोफाइटर बने यूरोप में, और इनको भी इन लोगों ने 4.5 या 4++ जनरेशन कहना शुरू कर दिया। बेसिकली सब कुछ 5th जनरेशन का माइनस स्टेल्थ, राइट। लेकिन क्योंकि ये इन सिस्टम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी इतनी शानदार है, जैसे रफाल और आपके यूरोफाइटर टाइफून की, कि ये ना मतलब भले ही स्टेल्दी नहीं है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी इनको काफी हद तक उस लेवल पर ले जाती है कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स हैं वो आपको है ना मतलब वहां पर ले जाती है, और वो एक डिफरेंस क्रिएट करती है। होप आंसर आपको मिला होगा। जी सर, थैंक यू। अल्फांसो। सागर सर। अच्छा सागर, हेलो, कैसे हो भाई? बिल्कुल मेरा बढ़िया। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक अपनी जो आर्म फोर्सेस है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं एरिया में ऑपरेट करती है, लाइक हाई एल्टीट्यूड, डेजर्ट, जंगल। तो सब चीज सब जगह काम नहीं करती है। तो वो स्पेसिफिक लाइक लेट से अपना तपस है। हाँ बोले। हेलो, आवाज ही चली गई। मुझे हेलो, लगा कि अभी मेरा आ रही है? हाँ ठीक है। अभी आ रही है। हाँ हाँ, तो मेरा तपस। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि तपस हाई एल्टीट्यूड पे काम नहीं करेगा, बट प्लेन्स के लिए तो काम करेगा ना। फिर टेक अटैक्स
उसका हाई वेट की वजह से वो हाई एल्टीट्यूड पे काम नहीं करा, बट प्लेन्स में तो काम करेगा ही ना। काम नहीं करेगा वैसा किसी ने नहीं बोला है कि काम नहीं करेगा, बट हाँ वो कोई नहीं बोल रहा है। देखिए मैं तो मैं उसमें ये क्या है ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि काम, मैं ये नहीं बोल रहा काम नहीं करेगा, बट उसके वजह से आप ऑर्डर रोक के खड़े हो, तो वो उसकी वजह प्लेन्स के लिए तो ऑर्डर दे दो थोड़ा सा। नहीं नहीं, आप एक मिनट, जब तपस की बात हो रही है तब आर्मी के जो मैं रिक्वायरमेंट थी 30,000 फीट एट 24 आवर्स ऑफ एंड्योरेंस, उसको तपस मीट नहीं कर पाया है, ठीक है, ये मेन बात है, उसकी वजह से उसको निकाला गया था अरे बस। नहीं अमन, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि ना मतलब जो जो रिक्वायरमेंट मीट हो रही है वहां नहीं, जहां पर एटलीस्ट मीट हो रही है वहां पर यूज कर। अच्छी बात बात आपकी। मीट कैसे होगी जब आपकी अरे स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट, आपकी जो भी अरे थी पहले तो यार रिक्वायरमेंट इतना उसमें। नाराज क्यों हो रहे हो? मैं नाराज थोड़ी ना हो रहा हूँ, मैं सुनो बस बोल सुनो रहा तो हूँ कि बात, लोग नहीं, पता है क्या है, सुनो तो बात पता है को क्या है, लोगों के अरे ऊपर ये, बात तो एक मिनट, सुनो तो बात। मैं आपको बताता हूँ क्या है, अरे नहीं यार, आप लोगों आप के ऊपर आप ना नाराज हो बहुत, रहे हो फ्री में। मैं कोई नाराज नहीं हो रहा हूँ, नहीं क्या हो रहा आप है मैं सुनो बताता तो हूँ, बात को, लोगों के ऊपर एक परसेप्शन बन आप गया बात है, को लोगों सुनो। के ऊपर एक नहीं परसेप्शन बना बन है गया है कि कुछ। आर्मी हर, बना है, अरे अरे मैं नहीं आपको बना ना है वो, रीच दिखाता हूँ, लोगों के तो ये, आप किसी और की चीज, लोगों की ये, आप किसी और का है ना फ्रस्ट्रेशन दूसरे के ऊपर नहीं उतार, मैं किसी का फ्रस्ट्रेशन नहीं उतार उतार रहे रहा, हो मैं आप। बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट नहीं जो आप थी, उतार रहे हो। जो रिक्वायरमेंट थी वही है। नहीं। अरे चलो ठीक है, लग रहा है तो सॉरी, हाँ लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी उसको टपस मीट नहीं कर पाए, मेन रिक्वायरमेंट ही वो थी नहीं कि 24 आवर्स की एंड्योरेंस चाहिए थी आप पहले और 30,000 फीट की पहले आप बात को समझिए कि आर्मी और वो ये बात सब समझ आ रही है, सबको समझ में आ रही है, वो ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट थी। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, ठीक है। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि अगर वहां पे नहीं मीट कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट लाइक दैट कि कहीं पे मीट करेगा और कहीं पे नहीं मीट करेगा एंड वी कैन हैव दैट सिस्टम, वो नहीं कर सकते हम लोग। But the thing is, Navy is अब considering that system. See, Navy है ना see, hello. What I'm trying to say is कि जो जहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वहां पे आप स्पेसिफिक चीज खरीदो, बट जो जहाँ पे नॉर्मल, लाइक सपोज आपको हाई एल्टीट्यूड पे अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर चाहिए, तो आप वहां पे अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर यूज करो, बट जहाँ पे प्लेन है वहां पे एटेक्स यूज करो ना। मैं वो चीज नहीं, बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात। आप जो बात बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, बात समझ आ रही है मेरे को। लेकिन देखो इश्यू क्या हो जाता है ना कि आपका खाली वेपन सिस्टम नहीं होता है। वेपन सिस्टम के साथ में आपकी ट्रेनिंग जाती है, आपकी लॉजिस्टिक्स जाती है, स्पेयर्स जाते हैं, उसके बाद में एसओपी क्रिएट होती है। और अगर आप, और उस एसओपी के साथ में आपका बंदा अलाइन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास में 8 अलग अलग तरीके के हॉविट्जर्स हैं और आपके पास में 2 डिविजन्स हैं या 3 डिविजन्स हैं, तो उस डिविजन्स में से आपकी जो एसओपी है उसके साथ में अलाइंड बंदे कुछ स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो आप हर एक बंदे को हर एक जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। आप फिर आप अगर चाहें कि मेरे को है ना मतलब चाइना के साथ में मिरर डिप्लॉयमेंट करनी है, तो आप वो उस तरीके से मिरर डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो लॉजिस्टिक्स जो नॉर्मली हम लोग है ना ओवरलुक कर जाते हैं, वो वहां पर परेशानी, समझ रहे हैं आप? हम मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं बाय बाय बाइंग लाइट टैंक्स ना। नहीं नहीं, नहीं कर पा रहे। देखिए समझिए ना उस बात को, आप लाइट टैंक अभी लेंगे, राइट? जब वो लाइट टैंक आएंगे तो एक स्पेसिफिक यूनिट के पास में वो लाइट टैंक जाएंगे और वो लोग डिप्लॉय किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में आपकी रिक्वायरमेंट अगर वहां पर मे बी लाइक 2000 टैंक्स की है, तो आपको आपके वहां पर T90 डिप्लॉय करने पड़ेंगे, राइट? तो जब वो आप T90 वहां पर डिप्लॉय करेंगे तो आपकी वहां पर लॉजिस्टिक्स जो चेन होगी वो स्ट्रेच होगी, ठीक है। समझ रहे हैं चीज को आप? तो आपको है ना मतलब ये नहीं कर सकते कि ना मतलब इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि इस जगह पर आपने इतने सिस्टम्स स्पेशलाइज्ड रोल के लिए आपने डाल दिए, लेकिन आप उसको स्टैंडर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आप है ना मतलब ड्रोन्स के केस में जो आप बोल रहे हैं, एटैक्स के केस में ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एटैक्स के आप 307 के ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके ऑर्डर नहीं दिए जा रहे, 307 के आप ऑर्डर दे रहे हैं, राइट? उसके बाद में जो जो दूसरी गन्स का जो की बात हो रही है, जो
कंपैरेटिवली हल्की होंगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक रोल के लिए ली जा रही हैं, वो एक स्पेसिफिक तरीके की गन्स होंगी। अब उनको उस रिक्वायरमेंट के लिए या तो आपकी है ना मतलब धनुष 52 सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर आपका ये भारत 52 सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस टरेन में उनको ले जाना है, जहां पर उन रिक्वायरमेंट है, वहां पर एग्जैक्टली उस तरीके का सिस्टम चाहिए। नाउ अब वहां पर आप बोलो कि 2 एटैक्स वहां पे डाल देते हैं, 5 टीईजी डाल देते हैं और 2 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर डाल देते हैं। आपकी इमेजिन कीजिए कि आपकी सप्लाई चेन कैसी हो जाएगी वहां पर। आपको हर एक तरीके के स्पेयर्स वहां पर रखने पड़ेंगे, हर एक तरीके का फ्लूइड आपको रखना पड़ेगा, हर एक तरीके का है ना मतलब जो फास्टनर्स हैं वो रखने पड़ेंगे, और इसमें कंज्यूमेबल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना मतलब थोड़ी देर यूज करने के बाद में आपको वापस से वो चेंज करनी पड़ती है, तो आपकी सप्लाई चेन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। यही है कि आपको वो ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आर्मी है ना मतलब तपस के अगेंस्ट है, या फिर आर्मी क्योंकि अगर आप देखेंगे कि See, Subodh, I'm not saying that army is against local product or say. What I'm trying to say that just in bulk you purchase the things that satisfy your general needs, but for specific need buy specific product. That's what I'm trying. तो वही चीज है ना कि ना मतलब आप स्पेसिफिक नीड ही है यहाँ पर, जो टीईजी जो जिसकी बात कर रहे हैं ना, टोड गन सिस्टम और जो दूसरा सिस्टम है, वो स्पेसिफिक नीड ही है। वहां पर ये मीट नहीं कर पा रहा है। आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है यूएवी की, वो स्पेसिफिक नीड ही है। उनको 30,000 फीट चाहिए अनफॉर्चुनेटली, तो इस वजह से वो लोग नहीं उसको ले पा रहे हैं। Army can use other drone in high altitude, but can use Tapas in jungle नहीं or plains. करेक्ट, That's what I'm trying to say. सुनिए तो मैं समझाता हूँ, एक मिनट, मैं बहुत जेनरिक वे में समझाता हूँ। कोई भी प्रोक्योरमेंट होता है ना, वो सिर्फ इसलिए एक टेरेन को देख के नहीं लिया जाता है, कभी भी नहीं लिया जाता है। तो ट्रायल्स जो होते हैं आपके, पहले समर ट्रायल्स होते हैं, विंटर ट्रायल्स होते हैं, हॉट ट्रायल होता है, फिर उसके बाद आपके इधर भी जाते हैं, जो मतलब आर्टिलरी सिस्टम है वो बालासोर में जाते हैं ट्रायल्स होने के लिए। तो ये जो दोनों ट्रायल्स को जो उन दोनों प्रोसेस से जाता है, क्लियर करता है, उन्हीं सिस्टम्स को लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक हम टेरेन स्पेसिफिक रोल कभी नहीं लिया जाता कि हाँ ठीक है टेरेन स्पेसिफिक है कि विंटर, ये जितने भी हाई ऑल्टी एरियाज है इनके लिए अलग ड्रोन होगा, राजस्थान जैसे एरियाज के लिए अलग ड्रोन होगा, फिर सदर्न एरियाज के लिए अलग ड्रोन होगा। वैसे कभी नहीं प्रोक्योरमेंट होती है। See, Aman. I'm not saying that desert. See, our 90% of the geography is not नहीं, high देखिए altitude. सुनिए तो आप बात को नहीं उस तरफ से नहीं ले जा पा रहे कि देखिए हाई एल्टीट्यूड नहीं है, लेकिन आप है ना फिर मतलब भोपाल के ऊपर तो तपस उड़ा के है ना मतलब आर्मी बॉम्बिंग करेगी नहीं, राइट? आर्मी को तो जम्मू में ही ऑपरेट करना है, अरुणाचल में ही ऑपरेट करना है, सिक्किम में ही ऑपरेट करना है, लद्दाख में ही ऑपरेट करना है, राइट? समझिए ना बात को। सुबोध भाई, हम लाइट टैंक को तो राजस्थान में यूज नहीं करेंगे ना, तो वहां भी तो उन्होंने स्पेसिफिक ही खरीदा। इस चीज का देखिए, वही एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि लाइट टैंक आपने जो लिया है, अभी आप T-72 वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? लाइट टैंक एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट T-72 आप है ना मतलब आप दोनों जगह ऑपरेट कर पा रहे हैं। भीष्मा को आप दोनों जगह पर ऑपरेट कर पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ना मतलब हम लोगों ने ऐसे किया नहीं है। इंडिजिनस ऑप्शन को सपोर्ट करने के लिए अर्जुन छोटे नंबर में ही सही, लेकिन लिया गया है। आपको पता है कि अर्जुन है ना मतलब हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट नहीं कर पाएगा, जस्ट फॉर द लॉजिस्टिक्स रीजंस। हम लोग यहाँ लेकर कैसे जाएंगे उनको, बस वही एक इशू। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है करके, जो टेरेन है उसके चलते ये परेशानियां हैं। और आपको है ना मतलब ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप है ना मतलब बोले कि तपस को खाली राजस्थान के लिए ले लीजिए, तो उसके लिए फिर आपको तपस की क्या जरूरत है? वो तो आप है ना सर्चर से भी कर सकते हैं। फिर क्यों आप तपस या हेरन से ही कर सकते हैं? पुराने आपके हेरन्स पड़े हुए बहुत सारे, उसके लिए तपस की क्या जरूरत? उसके साथ साथ लाइट टैंक के भी जो ट्रायल्स होंगे वो आपके हॉट तीनों ट्रायल्स कंप्लीट होंगे तभी जाके इसको इंडक्ट किया जाएगा।
लाइट टैंक विल बी टेस्टेड इन राजस्थान। और वो मतलब देखिए उसका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि क्विकली डिप्लॉय करने के लिए उसको अक्वायर कर रहे हैं, और वो तीनों जगहों के लिए ऐसा नहीं होगा कि ना मतलब लाइट टैंक विल बी स्पेसिफिकली फॉर लद्दाख। बट वो बोलो, आई ऑल्सो लव तपस, मुझे तपस पसंद है। तपस के ऊपर जो काम हुआ है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, ये चीज मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये कह देना कि ना मतलब है ना बिल्कुल हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। ठीक है। और एक चलिए और चीज है आज पता है, एक और चीज है, मैं जस्टिफाई कर देता हूँ एक चीज को कि जब भी कोई इम्पोर्ट होता है ना, तो इम्पोर्ट से पहले डीआरडीओ के ऑफिशियल्स का एक थप्पा नहीं नहीं लगता है कि नहीं, हाँ ये लगता है। इसमें नहीं, इसमें ये वाला जो केस है ये इम्पोर्ट नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ, हाँ यहाँ पे वही, कोई भी ठप्पा, किसी का ठप्पा नहीं लगा। ये तो इम्पोर्ट नहीं है तो ना, लेट्स नॉट ये गो वाला। इनटू दैट। हाँ ये इम्पोर्ट नहीं है, ये तो डीपीपी 2016 के थ्रू में आईडीडीएम है, नॉट थ्रू डीएपी 2020। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई सिस्टम अगर इन डेवलपमेंट होता है और डीआरडीओ वाले डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं अब इस पे और टाइम लगेगा, और वही लोग मतलब धप्पा लगा के देते हैं कि ओके फाइन यू कैन इम्पोर्ट द सिस्टम, तो उनसे ही आता है, ज्यादातर वही होता है। और हाँ आई मतलब सी इट इज नॉट लाइक कि ना डीआरडीओ की तरफ से ठप्पा लग जाता है, इट इज लाइक डीएसी में जाकर है ना मतलब बातचीत होती है, दैट्स वेयर यू टॉक अबाउट दिस, डीआरडीओ की ओपिनियन ली जाती है कि कैन यू मेक दैट इन दैट स्पेसिफिक हाँ टाइम, वही वही इनटू डीएसी दैट सॉरी। स्पेसिफिक कंडीशन। वो लोग बोलेंगे कि है ना मतलब नहीं, इट डजंट मेक सेंस टू अस, तो ठीक है ले लो बाहर से, क्योंकि आपको जब 4-6 यूनिट ही लेनी तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है। वही क्योंकि विश्वराज के केस में याद है डीआरडीओ सेट की जितना टाइम में आप है ना मतलब ये इगला अक्वायर करेंगे, उससे पहले हम लोग है ना विश्वराज बना देंगे, तो दैट दे डिड दैट। लेकिन वही है ना, फिर सर्टिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है विश्व आर्ट्स का, नहीं ट्रायल्स तो अभी भी इगला का भी पेंडिंग है है। ना, प्रॉब्लम वही था ना कि ना मतलब इगला के केस में भी वही होना था आपका, क्योंकि अब आप उस सिचुएशन में पहुंच गए थे कि साउथ कोरिया वाज इन द फुल ऑन मूड कि है ना मतलब हाँ ठीक है ले लेंगे देख लेंगे, हम्म। तो वही। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। और कौन, एक ऑल फ्रेंडली, गो अहेड भाई। Hey, hi Subodh. Am I audible? या यू आर। Hey, दो तीन सवाल थे मेरे। व्हाट्स द थिंग अबाउट LUH? मतलब आई थिंक लास्ट जब मैंने पढ़ा था तो आई थिंक द आर्मी गाइज वांटेड ऑटो पायलट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं so that was not the case with the LUH, but हाँ ठीक है, मतलब LUH के साथ में आर्मी wanted to do retrials, reconfirmatory trials on LUH, and they did that. Few like Yeah, that they did that, and that was successful. I mean, so like hopefully we get टाइम लगेगा उसमें, तो डीएसी में एक्चुअली इस बार जाने वाला था लेकिन नहीं गया see नहीं, 16 फरवरी को उसका होना था। the thing is like अब आर्म फोर्सेस को भी अपने बजट बराबर तरीके से प्लान करके ही ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, राइट। तो अभी क्या है ना मतलब इसके भी प्रचंड के भी ऑर्डर्स हैं, तो प्रचंड के जाएंगे, उसके बाद है ना मतलब एलयूएच के आएंगे। एंड द थिंग इज लाइक अभी जो पहले से है ना मतलब वो लोग सिस्टम जो अक्वायर कर रहे हैं उसको कंप्लीट जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक आई डोंट सी एनीथिंग मूविंग फर्दर। इसके प्रचंड के है ना मतलब एडिशनल ऑर्डर्स के चांसेस दिख रहे थे मेरे को। प्रचंड एज इन तो एलयूएच बोला गया था। I think हमारी पुणे में बात हुई थी राइट रिगार्डिंग दिस प्रचंड थिंग कि लाइक द पायलट did confirm regarding Helena, but हाँ वो करेक्ट भी he was also not very committable, like कि मतलब he was like कि वो जो भी है that is up to the upper management, उनका काफी like so what he was saying कि जब मैंने उनसे बात किया था तो he made it very clear कि if they want anti-tank guided missile system they can get it right now, क्योंकि with the Rudra they have already fired it, जो उनका ध्रुवास्त्र है they have already fired it, और प्रचंड has exactly the same thing, right? तो उस हिसाब से देवर लाइक हाँ, बट आते समय ना मतलब जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा, बट इफ दे वांट टू स्नैप इट ऑन इट, अभी भी वो लोग अभी भी कर सकते हैं करके ये था।
LUH का I think as Aman said कि ये ना LUH was supposed to go on DAC इस बार. I don't know why it wasn't, but let's see. अगला DAC में मतलब जाएगा कि नहीं जाएगा. Let's see. I mean, I hope प्रचंड भी आ जाए, LUH भी आ जाए. I'm big time stock holder of HL. Everyone is. Yeah. Or what about this long range land attack cruise missile? I mean, I think last year DSC last quarter में I think DSC gave approval for it, right? 10,000 fact- crores. I'll tell you something. Every time DSC approves a missile system, they will not publish it. वो छोटी missile systems जो tactical missile systems हैं, उनको छोड़कर any missile system which they are approving, उसके बारे में details नहीं. Which I have observed it. अभी सब लोगों ने सुना होगा कि निर्भय के ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम है उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड ऑल दैट, बट उसके बारे में कुछ भी नहीं है आया. DSC में बात भी नहीं हुई एंड ऑल दैट, कुछ नहीं हुआ. ब्रह्मोस को छोड़कर और किसी के ना मतलब ऑर्डर्स की कभी आपको बातचीत सुनाई देती है? नहीं होती, राइट? तो मिसाइल सिस्टम्स को लेकर आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी नॉइस. But like, why do you think that is? Because I mean, missile systems are basically the bread and butter right now for DRDO. Just that they don't want to let people know कि है ना कितनी कौन सी मिसाइल सिस्टम कितने नंबर में ऑर्डर किए ना. It's just that they want to maintain the ambiguity. ब्रह्मोस के केस में सिंस वो आधा इंपोर्ट हो जाता है तो दे हैव टू मेक इट पब्लिक. यहाँ तो है ना मतलब यूजर इज इंडियन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेकर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजाइनर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ठीक है ले लो. And what न्यूज का about अपडेट है वैसे किसमें LA तो LRLACM क्या ना, तो LRLACM नहीं. 2 वेंडर्स मिलके बनाएंगे. Correct, but what we are talking about is the orders of that. तो अभी ऑर्डर टेस्ट हो जाए पहले, उसके बाद ऑर्डर्स देखेंगे. टेस्ट ही नहीं हुआ अभी तक. नहीं देखो, एक चीज और बता दो. ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जब बोल रहे हैं ना, तो इसमें ना एक चीज और बता देता हूँ. जो ब्रह्मोस ER है जिसको टेस्ट किया गया था रिसेंटली, उसको एज एन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल बोला गया था. मतलब जो नेवी के लिटरेचर थे उसमें ना उन लोगों ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम बोला था. तो दैट क्रिएट्स मोर एम्बिग्यूटी. पहली चीज. There's one more system which is in plans जो DRDO बना रहे हैं, और as Aman said, 2 वेंडर्स मिलकर उसको बनाने वाले हैं. रीजन बीइंग propulsion system एक वेंडर बनाएगा और जो सीकर असेंबली है वो दूसरा वेंडर बनाएगा. तो वो जो सिस्टम है उसको भी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम ही कहा जाए. तो दिस इज व्हाई आई थिंक नहीं, उसमें वो है ना चेंजेस, उसमें बस इतना है कि ब्रह्मोस 1 इज अ सुपरसोनिक, दिस इज सबसोनिक, एंड 2 वेंडर्स. हाँ, एक तो आपका BDL है जो मतलब कि मेन जो है. उसके बाद हाँ प्रपल्सन सिस्टम्स के लिए भी दूसरे हैं, बट एक प्राइवेट वेंडर को पूरा एज अ DCCP लेने वाले हैं. तो 2 लाइंस होंगी आपके पास क्रूज मिसाइल्स की. तो यू कैन गेस कितने नंबर्स में इंडक्ट होने वाले हैं फोर्सेस में. आई थिंक एक पब्लिक सेक्टर लाइन है और एक प्राइवेट सेक्टर लाइन है. ब्रह्मोस, अच्छा, एनीवन वांट्स टू गिव अ गेस कि ब्रह्मोस के कितने नंबर हैं? टैग करना, मेरे हैंडल को टैग करना आप. ठीक है. इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे. कि इमेजिन कीजिए कि कितने ब्रह्मोस इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट करते हैं. बहुत मतलब किसी ने बीच में एक आर्टिकल भी किया था और वो डाला था, एंड ही वाज लाइक वे ऑफ. ठीक है. मेरे जो इन्फॉर्म्ड एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ही वाज वे ऑफ. ठीक है. और वो बंदा आधे भी नहीं काउंट कर पाया था. तो जस्ट इमेजिन कि कितने ब्रह्मोस है ना मतलब हैं. और दिस इज व्हाई आप आसपास जो पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको ना मतलब इस मिसाइल सिस्टम से डर लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और सवाल, सॉरी. लाइक ये डिफेंस एक्सपो कब है? लाइक वो जो फुल फ्लेज होता है ना, लाइक बायएनुअल, लाइक या डिफेंस एक्सपो ना मतलब अभी तक आ जाने चाहिए थे डिटेल्स, लेकिन नहीं आए हैं. और हम लोग है ना मतलब खुद है ना वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियली एक बार वो आ जाए डेट्स. तो
मैं भी है ना मतलब वापस की टिकट कराऊं एंड ऑल दैट। लास्ट ईयर आई थिंक अराउंड 15th ऑफ मार्च का कुछ बोल रहे थे अहमदाबाद में, राइट? वो तो एक वेंडर था हम लोगों का, मतलब जिसने बोला था कि वी विल बी देयर ऑन 15th करके। Because लाइट टाइम का प्रोटो आई थॉट कि मतलब डिफेंस प्रोटो तो नहीं भाई देखने मिलेगा, रेस्ट एश्योर कि ना मतलब प्रोटोटाइप नहीं देखने मिलेगा डिफेंस एक्सपो में, क्योंकि वो ट्रायल्स के लिए चला जाए और फोटोग्राफ शायद दिख जाए, कहीं कोई फ्लेक्स दिख जाए उसमें, फोटोग्राफ दिख जाए, तो उसके चांसेस हैं। प्रोटो नहीं दिखेगा, डोंट वरी। एंड क्या बोलते हैं इसको, सबका दुखियारा तेजस मार्क 2 का फुल फुल स्केल मॉकअप। हाँ, फुल स्केल उसका भी नहीं मिलेगा। वही कितना था, 1:16 था हमें जो लेटेस्ट 1:10 10 1:10। 1:10 हाँ, तो 1:10 देखने मिलेगा। 1:10 उसका दिखेगा और एमका का 1:10 का दिखेगा। हाँ, मतलब ये डिटेल्स रहते हैं। कभी भी हम लोगों को टैग करके पूछ लो कि क्या आ रहा है करके, हम लोग बता दें। चलेगा, ठीक है, थैंक यू। यू कैन गिव अप द माइक फॉर मी, थैंक्स। Yep, Alfonso, go ahead. ये आर्चर एनजी का कोई अपडेट आया? नहीं, Q2 2024 अरे थोड़ा डिले हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ना मतलब ये फ्री का है ना, ये देखो ऑफिशियल अल्फा डिफेंस स्टैंड नहीं है, मेरा पर्सनल स्टैंड है कि फ्री का है ना मतलब हम लोग है ना इसका वेट कर रहे हैं। पैसे वैसे आए नहीं है, बिना पैसे के ना कोई चीज नहीं बनती, ठीक है? तो फ्री में है ना मतलब वेट करने का कोई फायदा नहीं। बनने तो स्टार्ट हो गए थे, इतना आइडिया है मुझे, एयर फ्रेम्स तो बनने स्टार्ट हो गए थे। मैं फिर से बोलूंगा कि इंजन बाहर से आना है, जब तक आपका है ना मतलब पैसा नहीं आएगा तो इंजन इंपोर्ट नहीं होगा, और फिर इंजन इंपोर्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं हो रहा वहां पर। Any other question, Alfonso? नहीं, हो गया। दिल टूट गया उसका वैसे ही। Everything Footy the real OG. ओ Go वाह, ahead भाई। क्या नाम है? थैंक यू सर। सर सबसे पहला सवाल सर IAC-2 के ऊपर है मेरा। मेरा भी था, वो इंडियन नेवी चीफ से मैंने पूछा भी था, तो हंस के टाल दिए थे। तो सर भाई इस देखो 2028 के बाद पूछना ये क्वेश्चन। मैंने सच में इंडियन नेवी चीफ से मैंने पूछा, सर वी हर्ड ISC-2 विल बी ऑर्डर्ड एंड यू वर लाइक वेरी श्योर दैट यू वांट विक्रांत 2, तो बोलते हैं या और हंसते फिर चले गए। सर एंड एनीथिंग अबाउट कैट्स वॉरियर? हाँ, कैट्स वॉरियर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी रिसेंटली कुछ ड्राइंग्स देखी थी जहां से इंडिकेटर्स हैं कि फैब्रिकेशन तो एटलीस्ट चल रहा है, एंड मोस्ट लाइकली मे बी बाय एंड ऑफ द ईयर और स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोगों को कुछ देखने को मिल सकता है। अगेन इशू ये है कि कैट्स वॉरियर वाज सपोज टू वर्क अराउंड विद एक मदरशिप के साथ में, तो उस मदरशिप को अप्रूव नहीं किया गया है, जो किसके साथ में काम करेगा वॉरियर, राइट? तो जब तक वो चीज वहां पर आपको अप्रूवल नहीं आएगा, तो आई डोंट थिंक कि कोई अर्जेंसी है उस प्रोजेक्ट को लेकर। इट्स जस्ट दैट कि एक प्रोजेक्ट है, ये करना है, इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, एक चीज ये है कि यहाँ टेंडर्स निकल चुके हैं, फैब्रिकेशन प्रोसेस चल रहा है, बस इतना ही डिटेल्स है। सर आपने आज ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के बारे में बताया सर, इसमें सर समझ कल नहीं आ रहा, थोड़ा कल एक्सप्लेन कीजिए। सुबह वीडियो आएगा डिटेल में, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि HSL जो है आपकी जो वाइजैक में है, सरकारी शिपयार्ड, तो ये लोग है ना मतलब मिस्त्राल जो फ्रेंच लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है, उसको इंडिया में बनाने के लिए वेट कर रहे हैं कि अगर RFP आ जाएगा तो दे विल रिस्पॉन्ड फॉर मिस्त्राल। तो अगर HSL मिस्त्राल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली L&T जॉन कार्लोस
हुआन कार्लोस, दैट्स द राइट वे टू से इट। तो हुआन कार्लोस लेकर आएगा, और आई थिंक अगर CSL पार्टिसिपेट करता है तो होपफुली दे शुड हैव देयर इंडिजिनस डिजाइन, बट लेट्स सी। सर आपको क्या लगता है कि P75I के लिए स्पेनिश सबमरीन्स के पास जाना चाहिए कि जर्मन के पास? देखो कौन एक बेहतर चीज मैं बता रहेगा? रहा हूँ कि जब तक हम लोग है ना ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भागते रहेंगे तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेट इज कि है ना एक प्रूवन ये मिल जाए एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम, जो प्रूवन। स्पेनिश सबमरीन का जो सिस्टम है वो अभी उन्होंने खुद ने एक बनाई है सबमरीन, ठीक है, आइसेक बर्ला, जो एक है उनकी बनी हुई है। कितने दिन अभी तक वो ऑपरेट करी है आप सबको पता है, ठीक। तो वो एक प्रूवन सिस्टम नहीं है। दूसरा, जर्मन सबमरीन के साथ में दिक्कत है, आप इतना बड़ा हाइड्रोजन टैंक एक साथ लेकर चलते हैं, जो उनके AIP में कोई अलग तरीके से हाइड्रोजन बन नहीं रहा है। जैसे अपना DRDO का AIP है, वहां पर फॉस्फोरिक सेल यूज करके हाइड्रोजन बनाते हैं और वहां से आप AIP ऑपरेट करते हैं। सिमिलरली ये जो स्पेनिश सबमरीन है, ऑन बोर्ड आप हाइड्रोजन बनाते हैं और फिर यूज करते हैं। लेकिन जो टाइप 214 है वो बड़ा सा हाइड्रोजन टैंक लेकर घूमती है, और दैट इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब कि कब उसमें लीक हुआ या कब वहां पर है ना मतलब दिक्कत हुई एंड ऑल दैट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नन ऑफ दीज सबमरीन मीट इंडियन नेवीज रिक्वायरमेंट। मेरे हिसाब से तो मेरा पर्सनल टेक ये है कि आप अपनी खुद की सबमरीन बना सकते थे, बट सिंस हम लोग काफी दिनों से वेट कर रहे हैं, और ये ना लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग इजी होती है, चांसेस हैं कि जर्मन सबमरीन ही हम लोग है ना मतलब आगे बढ़े, उसी को लेकर चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि स्पेनिश सबमरीन अच्छी है बट इट इज नॉट प्रूवन, और प्रूवन ना होने के वजह से ही आप है ना मतलब DRDO AIP को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे, नहीं तो DRDO AIP में क्या कांटे लगे थे यार, राइट। थैंक यू सर, दैट्स ऑल। महेश कुमार, गो अहेड भाई। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं खास तौर पे इसलिए माइक हमने लिया है कि आज के डेट में अगर आप कंपैरिजन करें तो रिकॉनेसेंस एंड स्ट्राइक UAV जो है ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में वो पाकिस्तान हमसे आगे है। उनके पास अकिंशी जो तुर्की का अभी लेटेस्ट वर्जन है वो भी आ गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बे TV2 जो है बख्तियार वो भी है। TAI अंका है। विंग लुंग ये चाइना का दिया हुआ है। रेनबो चाइना का दिया हुआ है। बराक उन्होंने खुद डेवलप किया है। शापार 2 जो है उनके पास है। तो हम लोग के पास 2 लीज पे लिया हुआ रीपर ड्रोन है अमेरिका का, और आपका इजराइल का है। एक रुस्तम है जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस उसका डाउटफुल है। तो इसके बारे में कुछ बताइए ताकि थोड़ा सा देखिए, इंसाइट मिले। आपने ना जो ये टॉपिक उठाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब आपके पास में दो सिस्टम्स हैं जिनकी आपने बात की पाकिस्तान के पास में, अकिंजी और बायरेक्टर TPT, ठीक। तो अकिंजी में दो टर्बो प्रॉप इंजन यूज किए जाते हैं, और ये आप एक तरीके से फुल फ्लेज एयरक्राफ्ट मान सकते हैं। ये ड्रोन कम है, आप इसको मिसाइल ट्रक के तौर पर ले सकते हैं कि दो बड़े इंजन यूज करता है जो प्रैक्टिकली एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट में यूज किए जा सकते हैं, राइट, नॉट पैसेंजर, कार्गो एयरक्राफ्ट में यूज किए जा सकते हैं। तो लेकिन जो क्षमताएं वो लेकर आता है अकिंसी, वो आपकी काफी हद तक MQ-9B के साथ में मैच करती है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम एड्रेस करने की कोशिश उन लोगों ने अकिंजी से की है, हम लोग वही स्पेक्ट्रम MQ-9B से एड्रेस करने की कोशिश। जिसकी बात दूसरी जो हम लोग बात करते हैं बायरेक्टर जिसकी बात कर रहे हैं हम,
उस कैटेगरी में आप उससे ऊपर की कैटेगरी में हम लोगों के पास में हेरन ड्रोन्स काफी पहले से हैं और हम लोग काफी पहले से ऑपरेट कर रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान को जो बायरेक्टर मिलेगा वो मिसाइल सिस्टम्स के साथ में आएगा, तो वो 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम या फिर एक उनका माइक्रो म्यूनिशन होता है, 2 माइक्रो म्यूनिशन वो भी कैरी कर सकता है, तो टोटल 4 हथियार कैरी कर सकता है बायरेक्टर। वो चीज है, ठीक है। तो अगर आप आर्म ड्रोन्स की बात करेंगे तो सच बात है, एक्सेप्ट करने वाली बात है, हम लोग अभी पीछे हैं। आर्म ड्रोन्स हम लोगों के पास में नहीं है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो कोशिशें चल रही हैं उसके साथ में आप नए सिस्टम्स एक्वायर कर रहे हैं। जैसे कि जब ये अमेरिकन सिस्टम आ जाएगा, अमेरिकन MQ-9B आ जाएगा, तो आपके पास में वो स्ट्राइक क्षमता होगी। MQ-9 सॉरी टू दिस हाँ, MQ-9 रीपर जो है वो तो दे ही नहीं रहा है, 2 लीज पे लिया हुआ है, नहीं इसके नहीं, बारे में आपका ना मतलब ये जो देगा वो क्योंकि हम लोगों की तरफ से अप्रूव हो चुका है, उनके सेनेट की तरफ से भी अप्रूव हो चुका है। जस्ट है ना, मतलब फॉर्मल का जो नेगोशिएशन होने के बाद में डील साइन होनी है वो बाकी है। एक चीज था कि वहां पर कुछ लोग इसके खिलाफ थे और इसी वजह से ऐसा लग रहा था, परसेप्शन क्रिएट हुआ था कि शायद नहीं दिया जाएगा, लेकिन नहीं, वो MQ-9B आएगा, वो क्लियर हो गया। हमारे पास सॉम ड्रोन का जो है ये एक बहुत अच्छा है, जो कि इट कैन मैच विथ पाकिस्तान ड्रोन सिस्टम्स। ये बहुत इफेक्टिव है और इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, ईरान जैसा कंट्री जो कि रशिया को अभी आज के डेट में सप्लाई दे रहा है ड्रोन्स के, तो कितने ये छोटे मुल्क भी, जबकि तमाम तरह का उस पे इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस लगा हुआ है, despite that Iran is making a huge jump in drone technology, और हम लोग दुर्भाग्य से पीछे हैं, जिसमें कि काम करने की ज़रूरत है। अब इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और प्रमोशन ऑफ मेड इन इंडिया का हुआ है, तो वी होप इन नेक्स्ट 5 years, क्योंकि अजरबैजान और रशिया का जो हालत हुआ है ड्रोन, जो उसको क्या कहते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का, उससे दुनिया सकते में है। जाहिर है कि इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं लगता है और ये इफेक्टिव इतना ज़्यादा है टैंक्स के अगेंस्ट और मिलिट्री व्हीकल्स के अगेंस्ट, जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। नॉट इवन टैंक्स एंड मिलिट्री व्हीकल्स, बट स्ट्रेटेजिक आपका ड्रोन आके एक बंच ऑफ S-400 को ध्वस्त कर सकता है, किया भी है रशिया का। अच्छा, तो सर उसमें उसमें आपने ना 2-4 चीजें ना मतलब बड़ी अच्छी कही, उनको है ना मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ। पहले देखिए, हम लोग है ना भारत की जब भी बात करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1996 में हम लोग अपना खुद का ड्रोन उड़ा रहे थे। भारत में आप ड्रोन उड़ा रहे थे, इसका नाम था निशांत। तो ये 1996 की बात है, ठीक है। उसके बाद आपने 4 ये निशांत अक्वायर किए थे और निशांत आपको एक डिसेंट क्षमता देता था, और उसके बाद हम लोगों ने इजरायली सिस्टम अक्वायर करना शुरू कर दिए। इंडिजिनस ऑप्शन हम लोगों ने परस्यू नहीं किए उस समय। दोनों तरफ लिमिटेशंस हैं कि DRDO की तरफ से है ना, मतलब जो सिस्टम बनाए जा रहे थे वो उसी तरीके के सिस्टम मार्केट में अवेलेबल थे और सस्ते दामों पे थे, तो क्यों आप DRDO के सिस्टम्स के ऊपर आप समय वेस्ट करेंगे। वो एक चीज थी। लेकिन एक चीज था कि अगर आप 1996 में ऐसा ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे जो 4 घंटे की आपको एंड्योरेंस दे रहा था, तो सच बात यह है कि अगर आपने वहीं से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता तो आप आज एक बेहतर सिचुएशन में होते। ईरान के जिस ड्रोन की हम लोग बात करते हैं, मुहाजिर 6 करके, जो उन्होंने जो जब बनाया था, तो आपको बहुत ज्यादा क्षमताएं नहीं मिलती थी। आप 16,000 फीट 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर है ना, मतलब ऑपरेट कर पाते थे, और उनकी रिक्वायरमेंट के लिए वो काफी था। हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप इंडिजिनस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं तो
ईरान एक बेस्ट एग्जांपल है कि ना मतलब आपकी शुरुआत भले ही मॉडेस्ट हो, आगे चलकर आप चीजें बेहतर कर सकते हैं। टर्की भी कुछ उसी तरीके से, क्योंकि अगर आप फन फैक्ट मैं बताता हूँ कि जो टर्की और ईरान के शुरुआती ड्रोन्स थे वो इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेंगे। अगर आप उनको कॉम्पिटिटर बनाकर लेकर आएंगे तो वो मीट नहीं करेंगे हम लोगों की रिक्वायरमेंट। तो वो एक चीज है। लॉइटरिंग म्यूनिशन एक ऐसा सेगमेंट है, लॉइटरिंग म्यूनिशन और स्वार्म ड्रोन, जहां पर इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंट काम किया है, स्पेसिफिकली इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में। ये सेगमेंट में इतनी तेजी से काम हुआ है, इतना अच्छा काम हुआ है कि इस समय इंडिया इस सेगमेंट में अपने दोनों पड़ोसियों से काफी आगे है। लॉइटरिंग म्यूनिशन एक सेगमेंट ऐसा है जहां पर चाइना आप कह सकते हैं कि हाँ शायद बराबर है, और उनके पास में भी कुछ ऐसे ही सिस्टम है, हमारे पास में भी वैसे ही सिस्टम है। लेकिन हम लोगों की इंडस्ट्री उस लेवल पर आ चुकी है कि आप जिस तरीके के सिस्टम चाहें इंडस्ट्री आपको बनाकर दे सकती है। यूक्रेन में हम लोगों ने एक चीज देखी है कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि बायरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा गाने आए थे कि बायरेक्टर यूक्रेन को मतलब लगभग जिता दे रहे हैं। लेकिन जब टॉर आ गया वहां पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया था टॉर ने और पेंसेर ने, तो बायरेक्टर दिखना भी बंद हो गया, प्रोपेगेंडा वीडियोस भी आना बंद हो गए थे। तो वो चीज आपको दिखाती है कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन तभी तक इफेक्टिव है जब तक वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम, और वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने का काम जो करना है वो लॉइटरिंग म्यूनिशन को। आर्मीनिया अजरबैजान वाला जो युद्ध हुआ था वहां पर आपके जो इजरायली हारूब ड्रोन थे, उन्होंने आर्मीनिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स पहले खत्म कर दिए थे, उसके बाद बायरेक्टर जाकर है ना उनके आर्मर को मार पाया। तो ये सब सिस्टम्स एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तब जाकर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंबाइंड आर्म जिसको बोलते हैं वो हो पाता है। और देखिए ड्रोन अटैक डिफेंस सिस्टम में भी हालांकि इंडिया पाकिस्तान से आज आगे है आज के डेट में डिफेंस सिस्टम टू काउंटर ड्रोन एंड लॉइटरिंग म्यूनिशन, उस पे काम चल रहा है। मेरे ख्याल में 5 साल और लगेगा इंडिया को नहीं एंड सर, विल बी। हमारे पास में अभी हमारी थोड़े दिन पहले एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, एडिथ सिस्टम नाम है उनका। उनके कुछ सिस्टम्स हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले मैंने डिफेंडर X2 के ऊपर एक वीडियो किया था जहां पर बताया था कि ये स्वार्म ड्रोन्स के अगेंस्ट उनका काउंटर सिस्टम है डिफेंडर X2, और एक सिस्टम 8 ड्रोन्स मार सकता है। और ये खुद में एक ड्रोन है, मतलब ये उनके पास जाकर उनको मार सकता है। और अगर 8:1 का जो रेशियो है वो अगर आप लेकर चलें और ये वापस नीचे आकर रिफिल करके वापस से जाकर मार सकता है। और जो उनके जो फ्यूचर सिस्टम्स हैं वहां पर आपको शायद ज्यादा डिफेंडर छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही डिफेंडर है ना मतलब आपका काम कर देगा। ऐसे ही कुछ एक इंद्रजाल करके भी एक सिस्टम है जो लगभग बन चुका है। फिर एक और कंपनी है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं आपके है ना इन दोनों सेगमेंट में ड्रोन्स काउंटर ड्रोन्स दोनों में काफी सिग्निफिकेंट काम ऑलरेडी कर चुकी। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट। सुदीप्त, गो अहेड भाई। Hey, thanks Alpha Defense and मैं जस्ट वही अभी मिस्टर अशेष जो बोल रहे थे लाइक जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ टेक दैट पॉइंट अ लिटिल बिट फॉरवर्ड कि मैं जब भी लाइक आई वाज देयर इन डिफेक्सपो 2023 विथ इन अमेरिकन टीम बिकॉज मैं यूएस से ही गया था। तो मैं बहुत सारे लाइक ऑफ द रिकॉर्ड जो अपने मतलब ऑल द 3 सर्विसेज उनसे बात किया, अब ये किया। तो व्हाट आई फेल्ट कि रिगार्डिंग द आर्म ड्रोन्स द इंडियन मिलिट्री इज नॉट दैट काइंड ऑफ दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट लाइक दे हमेशा वो एक मेंटेन करते हैं कि like with a contested kind of air defense environment, armed drones always be a kind of liability rather than a kind of uh, showed in the arm lot like it's not going to be an advantage. So वो हमेशा रहता है जैसे सुबोध बोल रहे थे like all those LMs and loitering munitions and all other kind of drones that would be much more effective than armed drones. तो ये
even throughout the services, ये थोड़ा सा ये kind of uh, And that's the इसका thought process. So, yeah exactly. So thought process as well as थॉट the प्रोसेस तो नहीं, दैट्स द रीजन व्हाई दे वांट नाउ 155 ड्रोन्स, जिसमें से 97 आपके आर्म ड्रोन्स होंगे. and so not on that. So thought process as in contested airspace के लिए वैसे भी drones नहीं. So our doctrine has been more focused towards loitering munition than medium altitude long endurance, because हम लोग आप है ना मतलब अगर आप अपने आप को देखें तो आप कर्दिश रेबल्स के साथ में नहीं लड़ रहे हैं, या फिर आप हमास के साथ में नहीं लड़ रहे हैं, या फिर आप अ, ये हुतीज के साथ में नहीं लड़ रहे हैं. तो आपके जो एनिमी है जिनके अगेंस्ट आप जाकर ये सिस्टम्स डिप्लॉय करेंगे वो HQ9 यूज करेंगे, राइट. तो आपका सिस्टम भले ही हर्मीज है, तपस है, जो भी है, बट HQ9 के अगेंस्ट तो ये काम नहीं करेंगे, राइट. सर्वेलेंस के लिए है ना मतलब आपको लॉन्ग एंड्योरेंस सर्वेलेंस चाहिए, और वो उसके ऊपर उनका फोकस रहा है, ये बात सच है. लेकिन एक एक चीज उन लोगों ने रियलाइज की है, और दे आर मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स इट, कि मतलब वो जो लूप है हम लोगों का कि सर्वेलेंस के बाद में फिर देन यू स्ट्राइक, उसको कट शॉर्ट करने के लिए दे आर लाइक सर्वेलेंस के साथ साथ स्ट्राइक कैपेबिलिटी, लिमिटेड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए. तो उसी हिसाब से सिस्टम्स अक्वायर किए जा रहे हैं. एज अमन सेड कि है ना एक डिसेंट नंबर में हम लोग आर्म ड्रोन्स अक्वायर करेंगे. ऑल्दो हम लोगों की डॉक्ट्रिन हमेशा से वो लॉइटरिंग म्यूनिशन इंटेंसिव रही है और रहेगी भी, क्योंकि हमारे एनिमी डिफरेंट है. yes And if you know, Subodh sir, 2020 or 2021, Navy had released their UAV doctrine paper Yeah. for the Navy's vendors and requirement all. is different. Yes, Navy's requirement is completely different from other two services. Yes, exactly. So one of like I think a lieutenant colonel rank from the artillery. He was very enthusiastic about the swarm drones and the LM. Yeah, I lost my chain of thoughts. Yeah, it was swarm drone and LMs. Like all those services, they were very excited about those things. But आर्म ड्रोन्स जब आ जाता है तो No, थोड़ा उनका it's हेजिटेशन it, रहता था. हाँ भाई, like they were a little bit indifferent, like हाँ, but नहीं, it's if not that. You yeah, must understand. ऐसा नहीं है कि ना मतलब indifferent. It's just that uh, it is more intensive. Like जो doctrine रही है, it's been more intensive towards loitering munition, but it doesn't mean that that they have discounted the other option. वो भी वो लोग है ना मतलब उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं. नहीं तो आप है ना प्रोजेक्ट चीता इनिशिएट नहीं करते, देन exactly. रियलाइजिंग कि है ना मतलब हेरॉन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, तो आपने वो बंद कर दिया. लेकिन अगर आपका आइडिया होता है कि नहीं है या आर्म ड्रोन्स किसी काम के नहीं है, तो आप चीता इनिशिएट ही नहीं करते, राइट. Exactly. So, and surprisingly, exactly after that 2023 defect, so I heard a lot of like this armed drone projects that kicked off. Like, और मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था कि मैंने जब ऑन ग्राउंड उतना नहीं देखा था enthusiasm, but in reality there were a lot of projects. Okay, so moving forward, Subodh and the Alpha Defense team, I had a question regarding ये जो अपना आमका फेज 2 में जो इंडिजिनस इंजन जाने वाला है, देन वी आर स्टिल मलिंग ओवर द partner, or we have already chosen it, like what's the kind of road ahead regarding that? It seems Aman, quite you want to talk about this? stuck over here, Yeah, so देखो, so there were three companies which were interested in partnering with us. One was GE, one was Pratt and Whitney. No, four companies: GE, Pratt and Whitney, and then Safran and Rolls-Royce. Uh, you can nullify Pratt and Whitney's offer right now as well. GE's as well. Rolls-Royce, they were ready to give IPR rights and all, but then that company went into defaulters list
MOD's defaulters list. I don't know why. What was the reason? So it now only Safran remains as a practical thought. Previously as well, we have signed a roadmap with French officials in July 2023, I believe, which had mentioned a advanced jet engine for a combat aircraft. This time we have actually signed the letter of intent, I believe. So वो सर letter of intent था कि दूसरा था कुछ roadmap agreement था ना? Roadmap agreement. हाँ तो we have signed the roadmap agreement with them. We aren't getting any of the advanced technologies such as that कौन सा था सर वो variable cycle engine की क्या Variable बोलते हैं cycle उसको? engine. Variable हाँ, cycle. we are not getting those technologies for sure. तो बस वही है. हाँ एक फन फैक्ट लाइक एग्जैक्टली ऑन दैट डिफेक्ट्स फॉर 2023 मैंने GTRE वहाँ पे थे. अच्छा एक बात बताओ डेफ एक्सपो 2023 कब हुआ? सॉरी 2023 और 2022 व्हिच वन 2022 गुजरात में जो हुआ था एग्जैक्टली. हाँ 2022 मैं वो थोड़ी देर के लिए सोच रहा था. हाँ हमारी पूरी टीम थी वहां पर. So वहाँ पे जो GTRE के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव थे एंड he kind of told me one thing and that kind of stuck to my mind. Like वो उन्होंने बताया कि like all three are evil, like all three of them are evils. क्योंकि उस टाइम चल रहा था कि Rolls Royce, Safran and other probably the GE. So कौन थे वो नाम याद है आपको? नहीं नो आइडिया मतलब वो नॉट टॉप ऑफ द हेड राइट नाउ. सो उनका मतलब उनका काइंड ऑफ इंक्लिनेशन था कि वी शुड इन्वेस्ट काइंड ऑफ मोर इनटू इनटू GTRE. द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट एंड ट्राई टू काइंड ऑफ कम आउट विथ इवन मोर काइंड ऑफ स्टफ. आप we haven't invested in GTRE for 14 years as far as the Kaveri program goes. 14 years से हम लोगों ने वहां पर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया था. But what you invested was on Kaveri Drive, thankfully, because they lobbied for it. तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन रहता है that जितना क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से वो लोग लॉबी कर रहे थे कि हम लोगों को टेस्ट बेड दे दो, एयरक्राफ्ट दे दो. तो ऐसे सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे एज इफ दे वर आस्किंग फॉर देमसेल्फ. बट वो तो उनका रहता है. दे कीप सेइंग दैट. बट द थिंग इज हम लोगों ने जब मैंने जब सिद्दीकी सर से ये बात की थी, तो अगर इंडिया में अगर आपको कोई आदमी जो सबसे ज्यादा इंजन को लेकर पागल है तो वो सिद्दीकी सर. ही वाज विद GTRE. अभी बहुत सही जगह पर वो सही समय पर हैं और सही काम कर रहे हैं. तो उनकी तरफ से कहा गया था, मैंने जब उनसे बोला था कि सर क्या अपना इंजन नहीं बन सकता क्या? व्हाट डू यू थिंक? कि बनने के लिए बन सकता है, वी कैन मेक अडैप्टर साइकिल, ऐसा नहीं है. बट क्या हम लोग है ना उतना पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, उतना समय देने के लिए तैयार हैं, उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर कावेरी एरो. कावेरी एरो में MOD में थॉट है कि कावेरी एरो इज अ फेलियर. वो लोग हम लोगों को जब बता रहे थे कि हम लोग 73 किलो न्यूटन जब जनरेट कर पाए थे, कोई भी अगर देश होता तो व्हाट दे वुड हैव डन कि उसके चारों तरफ एक एयरक्राफ्ट बना लेते, राइट? एयरक्राफ्ट का वजन कम कर लेते, कुछ नहीं तो कम से कम एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट तो बना ही लेते, सर्टिफाई तो करा ही लेते. कोर एक बार सर्टिफाई हो जाता है, उसके बाद चीजें आसान हो जाती. तो व्हाट ही सेड वाज हम लोग उस चीज को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और उनको कन्विंस भी नहीं कर पा रहे थे. स्पेसिफिकली आपके ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो लोग थे जो एक्चुअली पैसे देते हैं, तो उनको जब तक आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे तब तक आपका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा. एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड कि दैट्स व्हेन ही सेड कि फॉरेन पार्टनर के साथ में दो चीजें हैं. अगर कोड डेवलप करते हैं हम लोग तो आपकी टाइमलाइन छोटी होगी, आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा और आपको वॉल्यूम का एडवांटेज होगा कि खाली इंडिया के लिए वो सिस्टम नहीं इंजन नहीं बन रहा है, राइट? कोई और देश भी उसको यूज करने वाला है, तो कुछ चीजें आप है ना मतलब वॉल्यूम का एडवांटेज ले पाएंगे. तो ये सब चीजें देखते हुए उन लोगों का था कि ठीक है पार्टनर तो करना पड़ेगा ये इस सेगमेंट में टाइमलाइन को देखते हुए.
Whereas हम लोग अपने इंडिजिनस ऑप्शंस चलाते रहेंगे, लॉबी करते रहेंगे, जितने फंड्स मिलेंगे उतने फंड्स के साथ में ही ऑपरेट करते रहेंगे, लेकिन वी विल कंटिन्यू। तो एक मिशन है उन लोगों का, वो लोग है ना मतलब उसी के अगेंस्ट उसी के साथ में काम कर। Exactly, I do agree to that. Or like his inclination and his kind of uh, actually he was trying to kind of tell that कि उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, they will not share any kind of a golden technology with us, but for commercial success they can come to us, and that could be a kind of good joint venture or successful joint venture. But yes, कोई भी ऐसा मैजिक वन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है एज पर हिम। no one will give you अपना है ना मतलब जो बोलते हैं ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी प्लेटर के ऊपर रखकर कोई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो ये तो हमेशा है। बट जब आप को डेवलप करेंगे चीजों को, तो आपको पता है कि क्या टेक्नोलॉजी आपके पास में है और क्या आपको चाहिए, उसके लिए आप पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि ना मतलब फ्री में लेंगे। तो क्या आप है ना उसके बराबर का मॉनेटरी बेनिफिट उन लोगों को दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो आपको वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। एक चीज ये भी है कि जब तक आप अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के करीब नहीं है, तब तक आपको बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं। अभी आप है ना मतलब 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बना पा रहे हैं, इस वजह से लोग आपको अपने फाइटर जेट बेचने को तैयार है, राइट? अगर नहीं बना पा रहे होते तो आपको कोई नहीं बेचने के लिए तैयार होता। एरो आपको मना किया गया था, स्मर्च की टेक्नोलॉजी आपको मना की गई थी, दोनों तरफ से। वेस्टर्न साइड से भी मैंने एग्जांपल दे दिया, रशियन साइड से भी मैंने आपको एग्जांपल। Exactly. So what do you think finally the question is like ये जो joint venture what is being in the progress, would it be capable enough to see the light at the end of the tunnel or अभी तो है ना जॉइंट वेंचर हुआ ही नहीं है। एक बार है ना मतलब जब तक पूरी डिटेल्स नहीं, देखो अभी तो है ना मतलब बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे हाँ होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं होगा। हम लोग है ना आपको यही चीज बोलेंगे जब तक हम लोगों को स्पेसिफिक्स नहीं मिलेंगे कि क्या डील है, क्या वर्क शेयर है, क्या अग्रीमेंट है। जब तक वो डिटेल्स नहीं मिलेंगी तो हम लोग है ना मतलब वो भविष्यवाणियां तो नहीं करेंगे। रोड मैप अभी साइन हुआ है, जॉइंट वेंचर किस कंपनी के साथ बनेगा वो डिसाइडेड नहीं है, टेक्नोलॉजी किस एंटिटी को ट्रांसफर होगी वो भी नहीं है। कुछ कोई आइडिया नहीं है इस समय ना मतलब there's no point making guesswork. Okay, thanks a lot guys, thanks a lot for the team, thank you very much. Perfect. Yep. Dilip Reddy and then we'll close it Aman, up. हाँ या वही मैं बोलने वाला था। Hi. Yeah, I started following defense news in last 3 months. Am I audible? Yeah, you are. Of course. Cool. Yeah. So I have two questions. One is related to engines, and the other one is related to radar. So the engine one, we are planning to go with a JV, right? Like for AMCA 2. AMCA Macro. Correct. Yeah. So how far-fetched it is to ask them to give their existing technology, because the existing one will be one generation lower, right? No, we are not asking them to we are not asking them to give their existing technology. We are telling them let's work together and make the technology which you don't have at this moment, we don't have at this moment. Let's work together and make that technology. I mean, I understand that is the current definition of JV and that is the current requirement. What I'm trying to ask is, you have Kaveri and it is not able to be used. I mean, we are not able to use it in a Tejas Mark 1 or Mark 1A. What I'm trying to ask is, just ask for the technology as part of the deal, which can be used in Kaveri to make it work with Tejas Mark 1A, so that we have independence in at least one fighter jet of Same way, make me and Subodh as the Prime Ministers of India. Oof, no. This is why I say that you got to be very serious when you are talking on public forum. This is not the way. Okay. No, okay, I mean, first of all, it's sorry if the question is not
No, Correct? Because this was for my team. So I okay. understood your question. Okay. Yeah. I understood your question. You got to be understanding that no one will give you the technology of their existing engines. What we are trying to work around here is let's work together and create technology for your future engines, which can be used by both of us. Meanwhile, we will continue working ingeniously to make Kaveri usable for LCA. So right now what we are doing is we are making an engine. That process is going on. We are making an engine that will be capable of producing 81 kilonewton in the Kaveri form. Okay, so that process is a separate process that is going on. AMCA Mark II process is more like next generation engine. That is a separate project, and that's going on further. They tried reviving Kaveri with the help of France, but they realized that it won't happen. They will give you M88 core with French parts, which will be sourced from France at higher rates, and tell you to use it and call it Kaveri. Practically exactly same thing what China is doing with the help of Russia. Okay. There was okay. Jokes apart, there is a program for that. Uh, National Commission for Engines or something like that was set by the GTRE, which has three objectives. Number one is to make a 90 kilonewton engine by themselves. Okay. Number two is for the what we say TVC technology. Okay, thrust vectoring for technology. And number third, I forgot that it was about the composites that SI one or carbide one. I forgot the whole thing. So These two that, are yeah. there. So for Tejas Mark 1 and Mark 1A, we'll be creating our own engines. Mark 2, that will be taken care by the Americans. Let's just accept the fact as of now. Yeah. Because I don't think so. There is no program like that for making a 98 kilonewton engine in India. For AMCA, we'll be partnering with a foreign vendor, most likely France or maybe someone else as well. But chances are France. Oh, Official thing. so cool, cool. I have another question regarding the radar. I mean, I read about the Uttam radar. I heard that the 760 plus QR modules radar is tested. We are currently developing a 912, right? 912 So, what is the current status of the 912? 912.1 is certified. It's Oh, going oh, on your LCA Tejas Mark 1A from I don't know. Initial idea was 20, but now it will be like some 30 or 37 or something. At this moment, I'm not sure of the number, but the later models of LCA Tejas Mark 1A will have that uh, ASA radar. The one which we are talking about, the 700 some odd TR modules, the QTR modules, uh, that system was more of a prototype that was for the technology demonstration. Actual engine, actual radar that is made that will be used is called Uttam Mark 1A, and that's the one which has like 900 plus TR modules. I Specifically, it's have not another question. 912, it's 992, 992 TR modules. Uh, yeah, so there's a L-band segment as well on that. I don't want to get into details, but if you consider L-band segment, the Yep. numbers will be much higher. No, it is in Oh, public domain. It is in public domain. Yeah, The no, director himself spoke on what I'm saying is like I don't want to get into the specifics. that. Acha, I know why. Yeah, that company. Exactly. Okay. Arey, so I have another question. So, go ahead. Yeah. Sorry. Yeah, so I have another question related to it in the sense that
I mean, I understand the development is completed and like, is it completely tested and certified so that in the sense that, let's say if something It is happens to the certified. Israel radar, No, it is certified. oh, okay. So So if something happens to Israel radar, we can replace it. correct. So what is happening here is the technology is certified and it is transferred to a sector, sorry, private sector entity. They are supposed to Okay. make that unit. Initially, Okay. they made a unit that was used for the certification purpose. So they have technological know-how as well, and they will be the entity who will be supplying these radar for the later units of LCA Mark 1A. At this moment, they are in process of ramping up their facility. Cool, cool. Yeah, yeah. One more question. Sorry to take more time. The question is, how far ahead are we in GaN technologies, gallium nitride? We have so this is what I'm saying. We have a Uttam ASA radar that is being tested with GaN modules, GaN TR modules. And we are making our own GaN TR modules. We are not sourcing it from outside. Like one of the European company, which says we were the first one to, make GaN TR modules, which they were actually importing from Raytheon. Uh, Okay, we are, unlike them, we are making our own things. cool, cool, cool. So, I mean, it's good to hear that we already fabricated and it's getting certified. Yeah. Yeah. So, you know what? Our advanced self-protection jammer pod, ASPJ, it also has your GaN transmitters and receivers. That is also made in India. There Even the are, Netra one, Netra 2s, they'll also feature GAN. yeah, GaN. And right now, I don't know how many of you follow IASC. If you get time, go to any of those events which they conduct and see what they are doing. You'll be amazed. Oh, cool, cool. I'll follow it. Yeah. There are no more questions from myself. Cool. Thanks. Thank Got you, it. guys. So we'll wrapping up. Subodh, just two questions, okay, just to follow up on this discussion, right? I mean, एक query थी मेरी, like this thing, right? This engine thing. Like we are attempting for the 81 kilonewton, right? And the Yeah. current one which we have is like 85. So is Current one, that no. like as So in 404 जो है वो LCA पे जो है is what I नहीं, know. LCA पे जो 404 है, that is cranked up to give you extra thrust. वो but you hardly use that thrust. So we'll be able to meet the like full tight profile. envelope. Yeah, full envelope. That is what the idea is. Plus, this system, this engine will be lighter than the 404. जो कावेरी बना रहे हैं वो लोग, that will be lighter than F404. वो भी एक So like added advantage होगा. if Because things go, yeah, okay. because right now the thing is like अगर हम लोग है ना 404 को देखेंगे तो 404 is very old technology. उसमें जो PMC नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग है. तो यहाँ पर है ना कावेरी में हम लोग वो सारी चीजें डाल रहे हैं. And this is why they have started fabricating a new engine as such, like completely new engine as such, जो फिर से ना वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में जाएगा, ग्राउंड टेस्टिंग करेगा, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग करेगा, फिर है ना फ्लाइंग टेस्ट बेड पे भी जाएगा. तो वो चीजें ना मतलब होगी तब उसके बाद उसको तेजस पे माउंट करेंगे करके. That's going on at this Yeah, moment. and two more. So like क्योंकि अभी इसका वो क्या बोलते हैं इसको like 404 का प्रोडक्शन रैंप अप होने में टाइम लगेगा, right? So that will also affect the तेजस का delivery schedule. So like as you said, उत्तम का जो radar है like 21st unit से, wouldn't that be technically possible if we try to squeeze it in? क्योंकि anyways like if I I hope don't know. it's not. At this moment, I see these were the प्री कोविड शेड्यूल्स जिनके बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं. तो अभी तो हम जो करंट प्रोडक्शन शेड्यूल है वो तो आया भी नहीं है हम लोगों के पास. I don't think even
that's made public. हाँ, तो इसके साथ साथ सुबोध सर एक चीज वो भी है कि फॉर सम सर्टेन एयरक्राफ्ट दे हैव इंजन, ऐसा नहीं है कि अभी कोई नीड, इतने जल्दी कोई नीड नहीं आने वाली है आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, फिर उसके बाद हाँ थोड़ा इशू हो सकता है, बट अभी कोई इशू नहीं है। नहीं, तो दैट इज लाइक वो जो इंजन्स जितने हैं और जिग्स पर जो जितने सिस्टम्स हैं वो है, फिर उसके बाद में देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर इन पाइपलाइन। तो पाइपलाइन एड्रेस करने के लिए जब तक हम लोग यहाँ पर रैंप अप करेंगे तब तक वो इंजन का जो बफर है वो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज पार्ट will this is what will create some problems। तो थोड़ा तो वहां पर हिकअप है, ऐसा नहीं है कि इट्स रोजी, हंकी डोरी नहीं है कहीं पर भी। नहीं, but like if like हमें उतना टाइम मिल जाता है तो can we like just not take उत्तम like push it on नहीं देखिए, वहाँ पर। ऐसा रहता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट प्रोडक्शन शेड्यूल जब आप बनाते हैं तो उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो आई थिंक इस मोमेंट पे ये डिफिकल्ट होगा कि ना मतलब बाकी कुछ लेट हो रहा है तो लेट्स रिप्लेस रेडार करके, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके होंगे आप ऑलरेडी। राइट। तो वो सब चीजें तो उनके भी ऑर्डर प्लेस हो चुके होंगे, उनके भी ऑर्डर है ना मतलब उनके जो टायर 2 सप्लायर्स हैं उनके साथ में भी उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे। तो और आपको पता है कि परचेस ऑर्डर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, राइट? तो नहीं कर सकते हम लोग वो चीज। So like yeah, go on. Yeah, so it cannot be done। हम लोग नहीं कर सकते वो चीज। And then if like it cannot be done for this one, तो ये हम like as in now I know the firm like I think Astra, right? So like those guys I mean those guys will be the ones who will be making the Virupaksha for the नहीं Su-30 upgrade। नहीं, देखिए एक नाम नहीं ले मिनट, सकते यार, प्रॉब्लम हाँ है। वही नाम नहीं ले सकते, उसके साथ साथ विरूपक्षा इज द टेस्ट बेड नॉट द नेम ऑफ द रेडार। ये Okay, fine, बहुत fine, fine, fine। नहीं Here's the thing, here's the thing। ये गलती हुई है लोगों से, सुबह भी अब बताना पड़ेगा लोगों को कि विरूपक्षा इज दी, विरूपाक्षा इट्स इज नॉट द द रेडार। रेडार टेस्ट बेड। हाँ, Yeah। और उसके साथ साथ उत्तम विल बी productionized by two vendors, one is your BEL and another is that vendor, okay, that vendor who shouldn't be named। कल हाँ, he who should not be named। Wait, but I just wanted to know like how these guys are so like you know I mean I hope these guys are very confident and true about it। नहीं, But the thing is like they have signed non-disclosure agreement and they are very particular about that, so that's why they don't want you to call their names। no regarding the Su-30 radar upgrade as in the Okay, AISA, right? yeah। So how are these guys so confident कि मतलब we are going for like 80 something Su's, right? Upgrade के लिए yeah। and we are So getting a what they have better done, what go they on। have done is like they have done two things. One is that they have created a planner। So what they do is like uh, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, तो एक जो तुम्हारा ट्रांसीवर बना, they use that like quad of it, चार ट्रांसमीटर और रिसीवर ट्रांसीवर्स। ये है ना मतलब डीआरडीओ कर रहे हैं, ठीक है? एचएएल के पास में ये डेटा था लेकिन डीआरडीओ कर रहा था। सो दे हैव स्टडीड इट एंड दे हैव रियलाइज्ड हाँ यार अपना उत्तम तो कम पार लेगा और इट विल बी लाइटर, कैन इजिली बी अकोमोडेटेड। तो वो चीज इसी वजह से वो लोग कॉन्फिडेंट है कि हाँ ठीक है SU-30 ठीक है हम लोग कर लेंगे। प्रॉब्लम तो छोटा बनाने में होती है ना, बड़ा बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। राइट एंड दैट सू का लाइक ये भी ज्यादा है, अनुज स्कूल भी ज्यादा बड़ा है, तो आई मीन दिस गाइस डोंट आई मीन मेरे को जितना पता था इट वाज लाइक कि जितने ज्यादा टीआर मॉड्यूल्स उतना ज्यादा रेंज इज व्हाट आई थिंक इट मेरा इज लिमिटेड नॉलेज। दो चीजें, पीक पार कितना है आपका वो भी डिसाइड करते हैं, एंड देन आपका गेन कितना है वो भी डिसाइड करते हैं। देन सर्टेनली नंबर ऑफ टीआर मॉड्यूल आल्सो मैटर कि उस ये सब चीजें मिलाकर आपका ना रेंज डिसाइड होता है। SU-30 विल हैव अ मॉन्स्टरस उत्तम, जो उसका जो डिटेल्स है आई कैन नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो उस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा जो ही हु शुड नॉट बी नेम्ड। लेकिन उनका जो
उत्तम है, that will be monstrous. I think उसके आसपास अगर किसी का रेडार दिखाई देगा तो that will be F-15 straight. And the deadline for this update is for, मतलब ये जो अपग्रेड करना है Su-30 का, उसका डेडलाइन कुछ है? डेडलाइंस नहीं, देखो ये क्या है ना, मतलब इट्स नॉट अ कमर्शियल थिंग कि ना, मतलब एचएएल को कमर्शियली दे दिया गया, बोला कि अपग्रेड कर दो. देयर DRDs who are involved into this. तो ये इसमें ना, मतलब डेडलाइंस पब्लिक होंगे ही नहीं. कभी अपग्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट, बिकॉज ये इंडियन एयरफोर्स का इंटरनल मैटर हो जाएगा. 2 साल तक उन्होंने अपग्रेड पैकेज का नाम तक रिलीज नहीं किया था. अब वो हमने निकाल लिया तो वो अलग बात है. वही वो उसके बाद जो है ना, मतलब हुआ था, वो तांडव हुआ था, वो पब्लिक नहीं कर सकते. वही तो, इसलिए अब कोई पब्लिक वो डोमेन में नहीं आएगा कि टाइमलाइंस की. नहीं, अभी बहुत मुश्किल है कि टाइमलाइन से ना, मतलब देखो एयरफोर्स अपने क्या हम लोग अभी भी है ना, मैं किसी से बात कर रहा था, मिराज के अपग्रेड के बारे में बात कर रहा था. टू मोर नहीं, मेरे को बात नहीं करनी, सॉरी. चुप हो जाओ सर. पहली एक वीडियो बना के हालत टाइट कर चुके हो, अभी इसमें नहीं. चलिए, आई होप, क्योंकि आई मीन आजकल जितना हम सीक्रेसी लाइक एम्बिग्यूटी रख रहे हैं, आई डोंट थिंक अदर देन द चाइनीज कोई और पास आता होगा, क्योंकि जितना एम्बिगुअस. इट्स बेटर टू बी लाइक दिस, ओके. पहले ना, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने हथियार है हमारे पास में, सब दैट वाज लाइक कैटलॉग. अब है ना, इस मोमेंट पे अब भेजना पड़ रहा है ना उन लोगों को, द सो कॉल्ड स्पाई शिप. आओ, ढूंढो, मॉनिटर करो, फिर उसके बाद उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है. तो फन फैक्ट. Yeah, I mean that adds an extra layer of deterrence, hopefully. You never know if it's 0 or if it's 100, right? मैंने बोला था ना कि ना, मतलब कितने ब्रह्मोस के नंबर है, गेस करो और मुझे टैग करो. वैसे भी नया हैंडल है मेरा ये वाला. Okay. I think last I read somewhere it was around 4K, upwards of 4K. But I'm not saying that, but give it a try. Keep trying, guys. One Chinese handle or Chinese media, in Chinese media it was like 18K, I think 18,000. That is what I said. Like that guy tried really good, but he's not close. He's not close based on my informed guesses. Informed guess. Extrapolation, but informed guess. Okay. नहीं. सुबोध भाई ने कहा था कि he was way off and he was very on the like आधे से भी कम बोल रहा है वो, right? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला. Yeah. नहीं, आपने बोला था. Informed guess. It's an informed guess. As simple as that. We'll keep it that way. Okay, चलो किसी को कुछ पता नहीं है. Thank you guys. Thank you. Okay. We'll wrap it up. चलो wrap up करते हैं. चलो. Thank you so much. Good night. Good night, guys.